بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہ خاص طور پر ہمارے جو کشمیری دوست ہیں ان کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ یہ جو انٹریکشن ود کشمیر یوتھ ہے، بیسیکلی اقبال's perspective of youth to transform challenges into opportunities۔ اس حوالے سے ہم آج مختلف کشمیری نوجوانوں سے جو اس وقت کشمیر میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور یوتھ کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو وہ مصروف رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے وہ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا، جو ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے اس دور میں اور آج کی سچویشن میں بہت ہی خوبصورت پیغام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوجوانوں کے لیے پیغام دیا ہے اس کے مختلف حصے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ خودی کا تصور بھی ہے، اس میں وطنیت پرستی سے چھٹکارا ہے، نسل پرستی کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا نوجوانوں کا تعلق بالخصوص اور امت مسلمہ تک کا تعلق اپنی جو ہے اسلاف سے وہ کتنا جڑا رہنا چاہیے، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنا جڑا رہنا چاہیے، اس کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک غیر متزلزل ایمان کے حوالے سے بڑی ڈسکشن کی ہے، مغربی تہذیب کی تاریکیوں کو نوجوانوں کے سامنے آشکار کیا ہے، اور خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی کہہ کر امت محمدیہ کی خاصیت کی بیان کر دی ہے۔ تو اس سارے سیشن میں ہم علامہ اقبال کے پیغام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم کاشف ظہیر کمبو، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں بشر پاکستان کے، ان سے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیشن کا آغاز کریں، اور ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کو جو ہے وہ دعوت دیں۔ جی کاشف۔ السلام علیکم سر. I welcome sir on behalf of Bashar Pakistan and Center of Peace and Social Studies. ابھی سر کچھ لوگ ہمارے پاس ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں. آپ کا ہم نے انٹروڈکشن کروا دیا اپنے سامعین کو، ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ. اور اس کے علاوہ سر ابھی ہم فیس بک لائیو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہوا. تو سر آج کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا اور ایک سیشن کرنے کا، وہ یہ کہ حضرت علامہ اقبال ہمارے ینگسٹرز کے حوالے سے ان کی وہ کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے تھے، اور ان کا جو ویژن ہے علامہ اقبال کا، اس کو سر آپ کس طرح سے اینالائز؟ السلام علیکم سارے ینگسٹرز کو آمدید کرتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ تو خود وہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں اپنے کلام کے اندر کہ میں اپنے جو کنٹمپریریز ہیں یا اپنے جو بزرگ ہیں ان سے تو میں کافی نا امید ہو چکا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ نوجوانوں سے ہی امید ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو کس طرح جو ہے وہ کمیونٹی کو لے کر آگے چلیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کیوں نوجوانوں کے لیے وہ زیادہ جو ہے ایمفسس جو ہے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نوجوانوں کے سیل ان لائف ٹو موو فارورڈ، ان میں جو ہے وہ رسک لینے کی جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہے یا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایسے لوگوں سے جو کہ عمر میں تھوڑے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور تھرڈ تھنگ از کہ نوجوانوں کے اندر ڈیزائر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ حاوی ہوتا ہے۔ اور علامہ کے مطابق جو ہے وہ انسان کی ڈیزائر جو آرزو ہے اس کو وہ ایک جو ہے از اے پیوٹل ریئلائزیشن ان یور سیلف، اور صرف فرق یہ
آپ نے کرنا ہے کہ وہ ڈیزائر اٹ کین بی اٹ کین ٹیک یو جو ہے ان دا رانگ. جو سبق دیتے ہیں علامہ کی خودی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ انسان کی خودی جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ منسلک رہ کر ہی وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن، یہ دو چیزیں جو ہیں، تین چیزیں بہت جڑا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی جو بھی کوئی سوچ ہے کسی بھی شاعر یا مفکر کی، وہ کوئی کبھی بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا تو دوسرے دن ان کا خودی کا فلسفہ میں بنا دیا. یہ اس وقت کے مسلمانوں کے حالات اس قسم کے تھے، اور وہ حالات جو ہیں وہی آپ کے جو اس قسم کے مفکرین ہوتے ہیں ان کو وہ ان کی سوچ کو شیپ کرتے ہیں. اینڈ اس زمانے میں آپ وہ دیکھیں کہ مسلمان ایک تو اپنے پولیٹیکل پاور ہو گئے تھے. جب اس زمانے میں اقبال پیدا ہوئے تو مسلمان جو تھے وہ اپنے لوئسٹ جو ایب کے اوپر تھے، اپنی زوال کی کم ترین حد کے اوپر، لیول کے اوپر جو تھے وہ گر چکے ہوئے تھے. تو ایک علامہ کے سامنے ایک مردہ قوم تھی، تو اس کے اندر کس طرح جو ہے وہ ایک فلولہ اور ان کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا کرنے کے لیے ایک فلسفے کی جو ضرورت تھی وہ خودی کی فارم میں اس کو لے کے آتے ہیں آگے. اور اس کے لیے وہ تین وجوہات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ زوال کی کیفیت جو ہے وہ کیوں پیدا ہو. اور وہ اپنے اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. یہ تین فیکٹرز ہیں جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر زوال جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہ اپنی ساری جو تھی ایک جاؤ مرتبہ اور عزت اور ویلتھ سارا کچھ کھو بیٹھے. سو یہ تھا ان کے مد نظر، اور اسی پس منظر میں انہوں نے خودی کا یہ فلسفہ جو ہے اس کو ترتیب دیا. تو نوجوانوں سے ہی وہ مخاطب ہیں، اور وہ ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے نوجوانوں کے لیے میرے جو پیغام ہے اس کو آسان کر، تاکہ ان کی سمجھ میں آ سکے اور یہ ہماری قوم کو ایک بہتر راستے کے اوپر وہ لے کے جا سکے. سر اس خطے کے حوالے سے آپ کا ویژن جو تھا سب کانٹیننٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی، ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ جو ہیں وہ کبھی بات اس خطے کے مسلمانوں کی کرتے ہیں، اور پھر افغانستان کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ ایک تھاٹ ہے. بیسیکلی ہمارے نوجوان شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ جو وے آف ڈیلیوری تھا وہ بیسیکلی پوئٹری تھا علامہ اقبال کا. ادروائز وہ ایک پورا فلاسفیکل تھاٹ ہے جو ایک پوری ایک ڈائریکشن علامہ نے دی ہمارے نوجوانوں کو. اور سر اس کی انکلکیشن ہمارے کنٹمپریری سبجیکٹس کے اندر ابھی تک ہمارے کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ اس کے بارے میں سر کیا رائے؟ بات تو جو انہوں نے جو ان کی پہلی کتاب تھی انہوں نے وہ اسرار خودی سے شروع کی، جو کہ انڈیویجول سیلف کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ واٹ ایور از کریکٹ آف، یعنی کہ وہ سیم پرنسپل نہ صرف انڈیویجول کو اپلائی کرتا ہے، وہ آپ کی نیشن کو بھی اپلائی کرتا ہے. اگر آپ کی ایک پرسنالٹی اگر ڈیولپ ہو رہی تو آپ کی ایک نیشن کی ایز اے پیپل بھی آپ کی ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہوا یا ہمارے ملک میں رائج نہیں ہوا، آپ کا یہ کوشچن ہے، یا آپ اس کو کسی اور طریقے سے؟ سر کوشچن تھوڑا سا جنرل سینس میں ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو فلاسفیکل تھاٹ ہے اس کو وہ یہاں پر ہمارے ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے. ایون کہ ہمارے جو ریسرچرز ہیں، ایون کہ سوشل سائنسز کے ریسرچرز جو ہیں اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن علامہ کی جو شاعری ہے وہ چونکہ ایک فلاسفیکل تھاٹ ہے، اس کو اس طرح سے نہ تو ہمارے ایکڈیمیشینز جو ہیں وہ سوشل سائنسز کے جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں ایکڈیمک رائٹنگز کی اگر ہم بات کریں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز اس کو ایک ایکڈیمیا کے اندر اس طرح سے جس طرح سے اس کی انکلکیشن ہونی چاہیے تھی ہو سکی ہے. تو کیا یہ اس کو ہم کس طرح سے یہ کنسیڈر کریں گے کہ ابھی تک ہم اس چیز میں ناکام کیوں ہیں؟
دیکھیں جی آپ کی ول پاور ہی نہیں ہے کہ آپ اقبال کی سوچ کو فروغ دے سکیں، سیدھی سی جو بات ہے. میں نے اس لیے آپ کو سوال آپ سے دوبارہ پوچھا کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ علامہ کی جو فکر ہے وہ اتنی ریولوشنری ہے کہ یہ جو 3 سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جن کا میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ علامہ یہ ان وجوہات سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال ہوا، یہ ابھی تک آپ ان کے اثر سے نکل نہیں سکے. نہ آپ کو ملوکیت سے نکل سکے ہیں، نہ آپ ملائیت سے نکل پائے ہیں، نہ آپ کو پیری فقیری کے ان سلسلوں سے نکل پائے ہیں جو آپ کو بے عملی کی ترغیب دیتے ہیں. تو آپ کا اپنے ملک میں دیکھیں، پاکستان میں یا پورے عالم اسلام میں آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ فکر جو ہے وہ رائج ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ایک یہ ملوکیت تو ختم ہو گئی ہے، اب تو جمہوریت ہے، لیکن وہ ملوکیت جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ابھی، چاہے آپ کی وہ جمہوری حکومت ہی کیوں نہ ہو، جس طرح ہمارے حکمران بہیو کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں، تو وہ کوئی کسی کو ڈکٹیٹر سے کم تو نہیں ہے ان کی جو رویہ ہے عوام کے ساتھ. تو یہی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی پھر ایک وہ ٹرو ویژن کو یا آپ کی وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کو وہ چیز ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی. یہ علامہ کی تھاٹ کو رائج کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ از دا فریڈم ٹو ڈیولپ دا انڈیویجول. وہ آپ مجھے تو ابھی تک وہ نہیں نظر آیا. سو اس کو اگر آپ وہ دیکھیں، یہ سارے طبقے جو ہیں یہ اقبال کو کوٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ان کے پیدائش کے دن کے اوپر ان کو کمیموریٹ بھی کرتے ہیں اور اکنالج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے. جب آپ ان کی فکر کی گہرائی میں یا ان کی تعلیمات کی طرف آپ لے کے جائیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ابھی بھی اسی لیے تو دیکھیں نا، آپ نے جو آئیڈیلزم آپ کو اقبال نے جو پیش کیا اپنی شاعری کے اندر، وہ آپ کو ابھی تک وہ باتیں آپ وہ پڑھتے ہیں ان کی شاعری تو لگتا ہے کہ یہ تو آج کے زمانے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ آئیڈیلزم آپ نے وہ ریلائز ہی نہیں کیا اور ایکچولائز نہیں کیا. سو آپ کو وہ چیز وہ لگتا ہے کہ جی ابھی تک تو یہ اسی طرح ہی. آپ جب تک خود حالات کو نہیں بدلیں گے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلیں گے. تو سر اس کے لیے ایک تو وے فارورڈ یعنی کہ یہ ہے کہ اس کی سیلف ایکچولائزیشن ہماری ینگسٹرز کو کرنی پڑے گی. اور جو علامہ اقبال کا سر ویژن جو ہے، میں جب خود بھی اس کو اسٹڈی کرتا ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اقبال آج ہی ہمارے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ پوئٹری کر رہے ہوں، کیونکہ یہ اتنی پرفیکٹ ہے. اور اس کی جو انکلکیشن ہمارے جو اس کی ریلیونسی جو بلڈ ہوتی ہے آج کی کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ، اسپیشلی انہوں نے جو اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے کچھ باتیں جو انہوں نے کی، اور جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ سوشل افیئرس کو اسپیشل جس طرح سے وہ ٹچ کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر، اور آج کے نوجوان کے حوالے سے جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اقبال ہمارے ساتھ ہی کہیں پر موجود ہیں اور آج کے ماحول کو اور افیئرس کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں وہ کر رہے ہیں. تو سر جو اقبال کا جو ایک تھاٹ ہے نوجوان کی خودی کے حوالے سے، سر اس کے حوالے سے چونکہ ایک بہت ہی ایمبیگوس سی سچویشن ہے، ہر جو بندہ ہے وہ اپنے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ڈیل بھی کر رہا ہوتا ہے. سر اس کے بارے میں آپ نے جو سمجھا اقبال کی خودی کو، وہ سر کیا خودی؟ دیکھیں جی، آپ نے یہ سوال تو بالکل صحیح کیا. یہ کیونکہ یہ ابھی تک یہ جو ایک ویری لائک کلیئرٹی کے اندر اس چیز کو ہمارے جو ایکیڈمیشنز ہیں یا علامہ کو پڑھانے والے اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پائے. اچھا، آپ اگر خودی کو، اب تو خیر اس پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کے اوپر جو ہے میں لے جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ اگر وہ سیکھ بھی جائیں گے، اگر آپ کو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا، تو وہ از لائک ناٹ ایون ہاف آف جو آپ کو کہیں کہ خودی ہوتی ہے. خودی بیسکلی جو ہے وہ آپ کو تربیت سے ہی آتی ہے. آپ کو حالات کا مقابلہ کر کے ڈائریکشن اپنی صحیح رکھ کے اینڈ وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کو راستے پر خود ہی چلنا پڑتا ہے، آپ کو مشکلات سے خود ہی ٹکرانا پڑتا ہے، خود ہی ان سے جو ہے ان کو آپ کو حل کرنا پڑتا ہے، اوور کم کرنا پڑتا ہے. اور وہ اسٹرگل کی کیفیت جو ہے آپ کے اندر کانسٹنٹلی جو ہے وہ رہنی چاہیے. اس لیے علامہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہ شبد نصیب جانت کے دمی قرار گیرت،
वो ताब जिंदगानी बतो आशिकार बादा, वो खुदा को दुआ, वो मतलब नौजवान भी दुआ करते हैं, खुदा करे कि तुम्हारी जिंदगी जो है उसमें एक लम्हा भर का जो है वो सुकून ना हो, यानी वो स्ट्रगल से जो है वो आगे ना हो, ताकि तुमको जो है वो जिंदगी की वो ताब जो है उसका राज जो है वो तुम्हारे पर वो यहाँ हो। तो स्ट्रगल इज द वे फॉरवर्ड। और वो स्ट्रगल किस तरह है, वो किस चीज के साथ या किन वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के साथ आपने मुंसलिक रहकर जो है वो आगे अपना सफर तय करना है। और वो जो है आप समझे एक थियोरेटिकल है और एक उसका वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि जिसको अलामा सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं, और मेरे ख्याल में कि हमारे ये मुसलमान कौम के अंदर इसकी सबसे ज्यादा जो है वो हम लैक भी करते हैं, इज द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वो चाहे आप वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप ले लें, या आप उसे कोई फिक्र की या अदबियात या आर्ट, कोई भी आप वो फील्ड ले लें आप, तो उसमें आप वो देखें कि क्रिएटिविटी जो है हमारी ना होने के बराबर है। इसलिए हम ज्यादा जो है वो क्योंकि वेस्ट से हमारी जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपना सारा एजुकेशन और वो सिस्टम उनका। ऑब्वियसली आप वो जिस तरह कह रहे हैं कि नौजवान उनसे ज्यादा ऑब्वियसली जो है वो इन्फ्लुएंस वो होंगे। अच्छा, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप वो किसी वेस्टर्न से सीख रहे हैं या किसी नॉन मुस्लिम से आप वो इल्म हासिल करें, इल्म का कोई मजहब नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इल्म ही से आपने जो है वो वे फॉरवर्ड जो है वो अपना जो है वो रास्ता आपने वो तलाश करना है। और ये जितनी भी अलामा आपको ये जो सिफात बताते हैं नौजवानों में, जिस तरह वो शहीद की सिफात है, ये सारी की सारी आप में अंदर नॉट ओनली एक स्पिरिचुअल बल्कि आपके साथ एक जो है वो दुनियावी एस्पेक्ट को जोड़ के आप करती हैं। एंड ऑल ऑफ देम लीड यू टुवर्ड्स क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी जो है वो उसको अलामा जो है वो हाईएस्ट जो है वो से जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि ये चीज देखें आप मुसलमानों के अंदर जो है वो हमारी सब साइंस टेक्नोलॉजी सब उनसे मांगी हुई है। अब इसमें आप जो है हासिल करके उसमें वो कहते हैं कि ये जो है आपकी आबा अजदाद से उन्होंने ये सारी साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेन से हासिल करके मुसलमान यूनिवर्सिटी से वो आगे लेके चलेगा, और हम मुसलमान जो थे वो रिग्रेशन की हालत में वो रहे। तो इसमें हमें जो मसला आता है, हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के अंदर कंफ्यूज करते हैं हमारे नौजवान। मॉडर्नाइजेशन जो है आप उसको समझे कि आप वो साइंस टेक्नोलॉजी और थॉट और इस किस्म की चीज को आप वो वेस्ट की अपनाएं और उसको आप अपने साथ जो भी है उसको करके आप अपने मुल्क में तरक्की जो है वो उसकी आप उसको लेके चले। और वेस्टर्नाइजेशन जो है वो है जिसके अंदर आप उनकी कल्चरल वैल्यूज को आप अपनाना शुरू करें, आप उनका कल्चर जो है वो आप जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। और अमूमन हम मॉडर्नाइज को हम वो समझते हैं जो कि हमने अगर वो वेस्टर्न लिबास पहन लिया या उनके तौर तरीके अपना लिए तो हम उसको कहते हैं कि मॉडर्नाइज हो गया, हालांकि वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो वेस्टर्नाइजेशन। सर, अल्लामा इकबाल की जो थॉट है उसको जब हम स्टडी करना शुरू करें तो वो एक ऐसा थॉट है कि शायद उसको ग्रैस्प करने के लिए हमें बहुत ही एक जो है वो डीपली स्टडी करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मैं अल्लामा की एक बुक स्टडी कर रहा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, तो बिलीव मी कि मुझे एक सफ़ा पढ़ने के लिए तकरीबन 6-7 दफ़ा उस पेज को बार बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो थॉट और जो विजन उनको मिला वो शायद वो उसको ग्रैस्प करने के लिए उसी विजन की शायद हमें ज़रूरत होगी। जैसे वो अल्लामा इकबाल का एक सेंटेंस वो अभी भी 6-7 साल पहले मैंने पढ़ा और आज भी मुझे वो मेंटली हिट करता है कि वो शेर था कि शेर नहीं था, वो फिक्रा था कि इस्लाम इज स्टेगनेंट फ्रॉम 500 to 700 ईयर्स, कि इस्लाम के अंदर वो जो है वो जिद्दत जो आनी चाहिए थी, जो कंटेम्पोरेरी अफेयर्स के साथ उसे डील करने के लिए हमें उसको साथ लेके चलना था। शायद वो मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का कि इकबाल ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन एक और शेर जब मैंने पढ़ा तो शायद मुझे उसका थोड़ा सा जवाब मिला कि इकबाल उसमें नौजवान को मुखातब करते हुए कहते हैं कि क्यों कुंद हुआ तेरा नश्तर तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। तो शायद इकबाल जो है वो
کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑے غصے میں بھی نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, تمہیں تحقیق کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. کبھی بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم 500 سال 700 سال پیچھے رہ چکے ہو. اور کبھی وہ جو ہے وہ اقبال کی ایک تھاٹ کے اندر وہ جو ڈفرینٹ, جب ہم انہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اقبال ہم سے مخاطب ہیں. تو جو کنٹمپریری افیئرس. جی سر, کائنڈلی سر. بالکل آپ سے ہی, نوجوانوں سے ہی مخاطب ہیں. یہ جو میں نے شعر آپ کو شروع میں وہ سنایا ہے, وہ کشتہ سلطانی مرائی پیری, وہ اسی نظم کا ہے. یہ جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں اس کا نام ہے آواز غیب. اور اس میں آپ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے آپ کو پشوا رہے ہیں کہ یہ اس چیز کے لیے یا یہ چیزیں اچیو کرنے کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا تھا, تو کیا وجہ ہے تم لوگ یہ جو ہے یہ سارا کچھ ہی ابھی تک اپنے جو ہے اپنے قابو میں نہیں کر پائے تم لوگ. اور اس کی وجہ بھی پھر وہی بتاتے ہیں کہ یہ جو تین انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کس طرح آپ لوگوں کو کرش کرتی ہیں. دیکھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیگنیشن آف تھاٹ. اور یہ جو علامہ بات کرتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تو لاسٹ گریٹ اسکالر جو آپ نے پیدا کیا مسلمانوں نے وہ ابن خلدون تھے, جو کہ یہ ریکنسٹرکشن یہ علامہ ذکر کرتے ہیں کہ 1500 AD کے اندر وہ ان کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد آپ نے کوئی ایسا اسکالر پیدا ہی نہیں کیا آج تک. اب آپ دیکھ لیں کہ 520 سال آپ کے جو ہے وہ اور مزید آپ کے گزر چکے ہیں. تو اس پائے کے اسکالرز آپ کی کمیونٹی میں ہیں اور کوئی ان کو آپ اس طرح ورلڈ لیول. سر ابھی ہمارے پاس نیکسٹ اسپیکر ہیں کیسر رٹھور صاحب ہیں, جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, جو سری نگر بیسڈ ہیں. عبدالرؤف صاحب ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں, اور اس طرح ہمارے 2-3 دوست احباب اور بھی ہیں جو ہمیں ابھی لائیو جوائن کر چکے ہیں. تو ابھی سر ہم ان کو سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد ہم کویشچننگ آنسرنگ سیشن کی طرف سر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں آپ لائیو رہیے گا تاکہ ہم آپ سے پھر نوجوانوں کو جو سوالات ہیں وہ آپ سے سر کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, اور آڈیبل پلیز. جی اب اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں جناب محترم کیسر احمد راٹھور. یہ کشمیری نوجوان ہیں. سوشل کن کن مشکلات کا انہیں سامنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے حوالے سے وہاں پہ نوجوانوں میں جو ایک بیداری کی لہر چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے ہمارے لیے یہ نہایت مسرت کی بات ہے کہ آج ہمیں ایک موقع ملا آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو اپنی بات لوگوں تک اور اپنے احساسات اپنے جذبات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس کے بعد ہمارے لیے یہ مسرت کی بات ہے کہ میاں اقبال صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں, تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اقبال کو لے کے کہ اقبال کی کیا کوششیں تھی کہ کس طرح نوجوان نسل کو جگایا جائے. جیسے کہ آصف صاحب کا کوشچن آیا کہ کشمیر سے ہم ہیں کہ ہم یہاں پہ کن حالات سے گزر رہے ہیں, اور اقبال کا جو پرسپیکٹو تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ان چیلنجز کو آگے لے جائیں. ہمارے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیڈ بک بن گیا ہے علامہ اقبال کو پڑھنا, کیونکہ جب ان کی رائٹنگز کو ہم پڑھ رہے ہیں ایک تھاٹ سا پریویل ہوتا ہے کہ کتنا بھی ظلم ایک بندے پہ کیوں نہ ہو, کتنی بھی بے خودی بندے میں کیوں نہ ہو, کتنا بھی بندہ ضمیر سے سویا کیوں نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی لائنز پڑھنے کے بعد ایک بندے کو ٹچ سا ملتا ہے کہ نہیں, میرے اندر جو جان ہے, میرے اندر جو ضمیر ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو یہی چیز, یہی وہ ایک شے ہے, وہ ایک چیز ہے جو ہمیں ہمیشہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اپنا کردار, اپنا رول ادا کریں. تو اس چیز کو لے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علامہ کی تعلیمات تھی, علامہ کے کلام تھے, وہ ہمارے لیے ہر وقت, ہر مشکل میں اور ہر چیلنج پہ ایک راہ ثابت ہو جاتا ہے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں ماڈرن پریزنٹ ٹیکٹکس جو انکلوڈ کیے گئے ہمارے ایجوکیشنل نصاب میں, ہمارے معاشرتی نصاب میں, ہمارے ہر کسی نصاب میں, انہوں نے نا ہمیں تھوڑا سا گیپ اپ کر دیا ہے چیزوں سے, علامہ اقبال کی نسبت سے, ان کی رائٹنگ سے. لیکن اس پہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج اس وقت یہ بنا ہے کہ کس طریقے سے ہم یوتھ کو راغب کریں علامہ کی طرف,
ताकि वो यूथ अपना फ्यूचर खुद देखे अल्लामा की रोशनी में, अल्लामा की तालीमात की रोशनी में, तब जाके हम अपने चैलेंजेस को मुझे लगता है कि उस तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे जिस तरीके से वाकई हमारे खित्ते कश्मीर को इस वक्त ज़रूरत है कि नौजवान अपने आप की सलाहियतों को, अपने आप के तौर तरीकों को चैनलाइज करें। तो वाहिद ऑप्शन मुझे लगता है कि पहले हमें अपने अंदर खुदी, जिस खुदी की अल्लामा इकबाल बार बार जिक्र करते हैं, उसको जगाना है। उसके बाद हमें अल्लामा इकबाल के पर्सपेक्टिव को देख के, पढ़ के, देख के हमें अपने आप को उस राह पे गामजन करना है। हमारे ज़मीर को बेदार करते हैं अल्लामा इकबाल, और हमारे लिए ये खुद ही को उजागर करते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम चीज़ों को बारीकी से देखें तो हमारे लिए मशाल राह और हमारे लिए कामयाबी बन। अच्छा, मुझे कैसर भाई बताइएगा कि अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे नौजवानों के लिए एक ऐसा थॉट है आज के दौर के अंदर जो बेसिकली हमारे यंगस्टर्स को अंदर से झंझोड़ता है कि आप जो है वो आप तो वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को लीड करना था, आपने राह दिखानी थी, आपने ये रिसर्च, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वैक्सीनेशन की जो इजादें थी ये आप मुसलमानों ने करनी थी। फॉर इंस्टेंस आज दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक की सिचुएशन है और हम पूरे 56 के 56 ममालिक हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं कि वहां से कोई वैक्सीन आएगी और ये कोविड-19 से हमारी जांच। तो जो इकबाल के थॉट हैं वो एक ऑप्टिमिस्टिक सोच देते हैं, कि विजनरी सोच देते हैं। तो कश्मीर के जो उस पार का कश्मीर है जहां पर आप हैं, उस तरफ इकबाल के ख्यालात के ऊपर, नौजवानों के ऊपर क्या उनका असर है इस वक्त? क्या नौजवान किस तरह से इकबाल को फॉलो करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से सोशल गैप्स क्रिएट हो गई है कि लोगों को पहले ही एकेडमिक्स से बहुत दूर रखा जाता है। जब एकेडमिक्स से लोग बहुत दूर रहेंगे, नौजवान बहुत दूर रहेंगे, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की तालीमात, इकबाल से वो कितना दूर हो सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे लिए कि खुशी की बात है कि एक सेक्शन हमारे सोसाइटी में यूथ का ऐसा भी है जो रागिब है अल्लामा की तालीमात को लेके। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वही एक किरण है जिसके ज़रिए से हम अपने चैलेंजेस को आज तक न पिछले 70 ईयर्स से चैनलाइज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ में उनको तब्दील करके हम अपनी तहरीक को, हम अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी हमारे यहाँ रेजिस्टेंट मूवमेंट के भी कोई, चाहे वो उनके सेशंस हो, चाहे वो उनके जलसे जुलूसे हो, चाहे उनके कोई तरबियती प्रोग्राम्स हो, वहाँ पे अल्लामा इकबाल को कोट किया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसके कलाम से एक मुर्दा दिल इंसान को उसका ज़मीर झंझोड़ने के पर मजबूर करता है कि नहीं, आपका वजूद किसी और चीज़ के लिए है, आपको सिर्फ बैठने के लिए नहीं बनाया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने बात कही कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया गया है, यहाँ पे गैप्स क्रिएट की गई है, तो इसमें मुझे अल्लामा का एक वो शायर याद आता है, नौजवान को सोजे जिगर बख्श दे, मेरे इश्क मेरी नस्ल बख्श दे, मेरे उस्ताद बख्श दे। हमें इस उस्ताद के वो अपना पैगंबर बना के, अपना रहबर बना के आगे जाना होगा। तब जाके आपने जो बात की, ऑप्टिमिस्टिक सोच इनकी थी, ऑप्टिमिस्टिक विचार जो इनके थे, उन पे हम गामजन होके अपनी बात को, अपने चैलेंजेस को रजिस्ट करके आगे वे आउट ढूंढ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम अपने जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ जाते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन आंसरिंग का हम सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। आसिफ भाई, ओवर टू यू। अभी हमें नेक्स्ट कौन ज्वाइन करेंगे? जी, हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन है कश्मीर से अब्दुल रऊफ, ब्रदर अब्दुल रऊफ, यूथ रिफॉर्मेशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब्दुल रऊफ भाई, आप थोड़ा सा इस हवाले से हमारे पाकिस्तान की यूथ को वहाँ के हालात से भी आगाह करें, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मिशन के हवाले से जो कुछ आप कर रहे हैं वो भी हमें आगाह कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जी, हम असल में यहाँ जम्मू के डिवीजन से हैं, जम्मू डिवीजन राजौरी पुंछ सेक्टर है उसमें। तो आप लोगों का सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इस तरह का एक मोमेंट का जो आगाज़ किया है। ये बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर एक नई सोच को और एक नई जो है मोमेंट को आगे लेकर चलें, क्योंकि
ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرنا اور کہ وہ ہم پر یہ کر رہے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ سوچ ایک طرح کی ڈیولپ کرنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے ایک طرح کے سے مطلب ڈرے ہوئے رہیں اور جو ہے ایک طرح کی ہمارے اندر کمتری سی محسوس کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کریں اپنی نوجوان نسل کے لیے اور آنے والی جو فیوچر میں ہے، تاکہ کچھ کریں تاکہ ان کے لیے ایک ان کو بھی لگے کہ ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو. تو جیسے کشمیر کا جو ایشو ہے، اس پر جو ہے یہ 70 سال سے چلا آ رہا ہے، تو اس ایشو کو ہم سب مل کر اکٹھے سالو کر سکتے ہیں. اس میں 3 جو فریق ہم سب ہیں، جیسے جموں کشمیر کی جو عوام ہے، ہندوستان کا فریق ایک جو پاکستان کا ہے. اگر تو ہم اپنے اسی جو ہے نفرت والے ایجنڈا کو لے کر ہم چلیں تو شاید اس کا حل ممکن نہیں ہے فیوچر میں ہمیں مل سکے. لیکن اگر ہم سب کو ملا کر اگر یہ نفرت والے جو لوگ ہیں ادھر ادھر سب جو ہے ان سب کو نفرت کی اس بھاشا کو ختم کر کے اگر ایک پیار کی بھاشا کو شروع کیا جائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک آنے والے جو ریفارم اس طرح کا آئے، لوگوں کے بیداری آئے، تاکہ خود جو ہے عوام جو ہے خود مختار ہو سکے، ایک اس طرح کی سوچ بن سکے. تو اسی طرح کی جو ہے سوچ کے لیے میں بھی ایک اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو ایک ریفارم کی طرف لایا جائے، ایک سوچ کی طرف لایا جائے کہ ہم خود پہلے سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جب ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کسی کے مختاری کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کسی کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے کسی کے اوپر، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی جو فکر پیدا کی جائے، جو علامہ کا بھی یہی تھا کہ ہم خود ہی ہمارے اندر اگر آ جائے، ہم خود اپنے ساری چیزوں کو لے کر ہم چلنے والے بن جائے. میڈیکل فیلڈ میں ہم ہر فیلڈ میں اگر ہم اپنے آپ کو آگے لے کر آنے والے بن جائیں، کسی کے اوپر ہم دیکھیں نا اور پھر یہ بلیم کرنا ہم چھوڑ دیں کہ کوئی ہمارے لیے سازش کر رہا ہے. ہم خود اس طرح کی آگے آ کر اپنی ایجنسیز کو جو ہے بحال کریں، ان کو اتنا طاقتور بنائیں، نوجوان آگے آ کر اس طرح کی سوچ کو پیدا کریں. تو آپ سن پا رہے ہیں نا میرے کو؟ جی بالکل جی آ رہی آواز. جی. تو یہی ایک سوچ ہے جس سوچ کو میں بھی مطلب کوشش کر رہا ہوں لے کر چلنے کی. تو باقی یہاں پر ایک چیز میں سوری ایڈ کرتا ہوں بیچ میں، آپ اس کو بھی کائنڈلی ساتھ ہی رپلائی کر دیجیے گا. آپ ماشاءاللہ یوتھ ریفارمز جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یوتھ کے ساتھ اب بہت ہی کلوز انٹریکشن رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے جو حالات پچھلے دنوں ہوئے اس کے بعد تو کافی سچویشن اور ایک یہاں پر بھی ہم بھی یہاں پر پاکستان کے لوگ بھی دنیا کے اندر جو ہیومن رائٹس کے باقی جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کافی پریشان تھے اس حوالے سے کہ جو سچویشن چل رہی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا پکچر کو پورٹری کرنا چاہیں گے، وہ کس طرح سے حالات بنے اور اب سچویشن کیا ہے؟ ہاں، حالات وہاں پہ اصل میں وہاں تھوڑی چیزوں سے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی ایک کلچر جو ہے وہ اسی طرح کا کلچر آج بھی ہے کہ ہم نے جو آپریشن کو ریزسٹ کرنا ہے، وہ کلچر جو ہے ان کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے کہ اگر کچھ بھی مطلب غلط ہو رہا ہوگا. جیسے یہاں پہ کچھ بھی پہلے وہ آیا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، CAA بل آیا، اس کے علاوہ اور بھی جتنی طرح کی جو مطلب پالیسیز اینٹی پیپل ہوں یا جو لوگوں کے خلاف ہوں یا عوام کی جنتا کے اس میں وہ نہ ہو. اسی طرح کا AMU کا جو یہ وہاں کا کلچر ہے کہ وہ آپریشن کو، ہر ان چیزوں کو جو ہے ریزسٹ کرتے ہیں. اسی ریزسٹ میں ہی وہ پھر اصل میں آپ کو پتا ہے ایکسٹریمسٹ پارٹی جو ہے اس وقت رجیم میں ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہاں پہ حالات بنتے ہیں. تو حالات بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں، جو ہے وہ سوچ بھی ایک نئی طرح کی سوچ لوگوں کے اندر آتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے ان کو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب جو پولیس سے ہٹ کر کچھ لوگ جو ہے وہ اندر آتے ہیں، مارتے ہیں، یہ اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے وہاں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو یونیورسٹی کے اندر کا ماحول ہے وہ الحمدللہ ایک دم سیف طرح کا ماحول ہے کہ وہاں کسی اسٹوڈنٹ کو اس طرح سے ہراس نہیں کیا جاتا اندر جو مطلب یونیورسٹی کے. تو باہر کا ماحول تو اصل میں اس وقت وہ اس طرح کا ماحول ایک کریٹ کیا گیا ہے. تو اس ماحول کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے محنت کریں، کوشش کریں اور اپنی لینگویج اور اپنی اس طریقوں کو بدلیں کہ ہم سے ہی یہ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر چلیں گے جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا. ابھی آپ یہ والے کرائسس دیکھیں اگر آپ جو چل رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کو کہ اس سے کیسے نمٹا جائے گا. تو ان سے تو اس بات کی امید نہیں لگا سکتے ہم کہ وہ ان سے کچھ ہمیں اچھا ملے گا. تو ہمیں ایک طرح کا مطلب سب کانٹیننٹ میں جیسے انڈیا، پاکستان اور جو جموں کشمیر، یہ پورا ایک جو خطہ ہے، اس میں خالی ایک طرح کے مطلب اگر آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں گے یا مطلب آپ دوسرے
जगहों के मुसलमानों को देखेंगे, और लेकिन मेन लैंड जो इंडिया है वहाँ के जो 30 करोड़, कम से कम 30 करोड़ आवाम मुसलमानों की है। तो अगर हम उनका भी इस तरह से, हमारी लैंग्वेज और भाषा इस तरह से होगी कि वो लोग वहाँ पे किसी तरह से हर्ट हों, है नहीं, वहाँ पे उनको ब्लेम किया जाता है, हमेशा इस बात के लिए ब्लेम किया जाता है कि तुम जो है पाकिस्तान के गुण गाते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लोग जो है इस तरह की सोच नहीं रखते हैं कि मतलब अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो ये अलग बात है कि मुसलमान को कहीं का भी हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, उसकी मोहब्बत दिल में है, लेकिन हम इस मुल्क में रहकर गद्दारी पाकिस्तान मतलब उसके लिए गद्दारी करें या इस तरह की कुछ सोच नहीं है, लेकिन इस चीज को फरोग दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें एक तरह का अच्छा पैगाम देना चाहिए अपनी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से भी, कि उन लोगों के साथ जो मतलब बर्ताव होता है वो ना हो, है नहीं, उसको उसको उजागर किया जाए। जो लिंचिंग का कल्चर चल रहा है, आपने देखा होगा, उस तरह का कल्चर को जो है हम जो है उसको खत्म कर सकते हैं। वो इस तरह से हो कि हम नफरत की भाषा को छोड़ दें, फेक न्यूज़ को जो है वो खत्म करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। लिंचिंग तो एक जगह होती है, एक इंसान का मर जाना भी जो है वो अल्लाह के नजदीक मतलब नाहक मरना जो है वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देने के बराबर है। तो कैसे किसी एक बंदे को जो है मतलब 1000 बंदा इकट्ठे होकर मार देता है, तो फिर हम पूरी दुनिया में बोलते नहीं है। तो रऊफ ये सब भाई, चीजें, और बोलने का तरीका ये है कि हम जी जी रऊफ भाई, एक चीज मैं यहाँ पर अगर ऐड करूँ तो हम आते हैं जी जी कॉमन ग्राउंड्स की तरफ ना, जो एक कॉमन ग्राउंड्स हो सकते हैं। कॉमन ग्राउंड्स की अगर जी हम जी बात करें तो अल्लामा जी इकबाल जी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम है वो एक हम सब के लिए, सब कॉन्टिनेंट के रहने वालों के लिए कॉमन ग्राउंड हो सकता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि हमारे जो, अगर हम जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात अल्लाह करें तो वहाँ पर अल्लामा इकबाल के जो थॉट हैं उनकी, उसके हवाले से लोगों के क्या ख्यालात हैं और कहाँ तक उनको स्टडी किया जाता है और उनसे रहनुमाई ली जाती है? जी जी अल्लामा तो वहाँ की भी मतलब मतलब वहाँ अच्छे अल्लामा की भी मतलब पढ़ा जाता है अल्लामा को। लेकिन जो अल्लामा का जो कंसेप्ट था मतलब पाकिस्तान का कंसेप्ट, और फिर उनके जो अगेंस्ट थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे गालिबन, कि उनका कंसेप्ट थे ये था कि कौम जो है वो इससे बनती है, कल्चर से और एक ट्रेडिशन से और मतलब एक नेशन से बनती है। और अल्लामा का कंसेप्ट ये था कि वो मजहब से बनती है, कि मजहब जो नहीं वो तुम भी नहीं। पाकिस्तान तो उसी मजहब के नाम पे बना कि ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ पे इस्लाम के निज़ाम को कायम किया जाए। अगर वो इस्लाम का निज़ाम अगर आज तक 70 साल से भी कायम नहीं हो रहा, तो फिर उसकी फिक्र आज हमें करनी चाहिए कि आज वो जो है उसकी ज़रूरत है कि अगर हम अपने इन 70 सालों में भी अगर वो क्रिएट नहीं हो पाया, मतलब उस तरह से उस बिल्कुल उस सतह पर हम नहीं पहुंच पाए, तो हमें उन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए और उनको करने की कोशिश करनी चाहिए कि ताकि वो जो अल्लामा का ख्वाब था कि कौम जो है मजहब से है, तो वो मजहब को बिल्कुल फॉलो करने वाली बने। तो यही अगर हम पाकिस्तान ही अगर उस तरह से मतलब आगे आएगा और वो एक प्लेटफॉर्म पेश करेगा, तो सारी दुनिया के लिए इस वक्त जो है कुछ ना कुछ अवाम जो है पूरी दुनिया में नौजवान करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करना नहीं चाह रहा, हर कोई करना चाह रहा। हर जगह से आप इंडोनेशिया में देखेंगे, मलेशिया में देखेंगे, आप पूरी दुनिया में देखेंगे, तुर्की में देखेंगे, हर जगह कोई नौजवान जो है वो मुतहरिक हैं। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से उसको फॉलो किया जाए, कि दिखाया जाए कि दुनिया को कि हम भी जो है। अब एक मूवी को देख लें कि एक मूवी बनी है, मतलब ये सीरियल चल रही है इर्तुग्राल की सीरियल, तो इसको कितना लोगों को जो है एक क्रेज है इस चीज का। तो अगर रियलिटी में ये चीजें आ जाएं, तो आप क्या सोचते हैं कि दुनिया के अंदर एक नई वो तहरीक नहीं आ जाएगी? अगर एक सोच को इतना वो सीरियल के जरिए अगर इतना लोगों के अंदर वो क्रेज आ रहा है, तो ये सब चीजें हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। ये सब चीजें जो है असल में रियलिटी में। लेकिन उसके लिए अगर हमें आगे आना होगा, हमें वो जो कंसेप्ट है उसको फिर से मुतहरिक करना होगा कि कौम जो है मजहब से है, और उस मजहब से के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो जहाँ कहीं भी परेशान हो वो हमारे हैं। वो हिंदुस्तान में हों, वो जो है बर्मा में हों, वो जो है चाइना में हों, वो कहीं भी हों, कहीं भी जो वो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो सब अपने हैं। और उन तब को जो है हमें उनकी जो है देखभाल करनी है। क्यों जो है ओआईसी इतना मुतहरिक नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता? ठीक है, आपने देखा होगा पिछले दिनों का जो चला, मतलब दुबई वालों ने या यूएई वालों ने जो है उन्होंने थोड़ा सा वो मुतहरिक हुए, तो उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। तो यही चीज है कि अगर अगर सब जो ओआईसी सही से अगर वो मतलब उतना मुतहरिक हो जाए जितना यूएनओ है, तो एक नया जो है वो पीस का और हार्मनी का और उस तरह के टॉलरेंस का एक नया वो बात शुरू हो सकता है। तो अच्छा उसके रऊफ भाई, लिए सबसे सूट
जगह जी रऊफ भाई, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर हम दोबारा सेकंड राउंड में आपकी तरफ आएंगे, मजीद चीजें फिर हम आपसे जी लेंगे। जी जी आपने ये बड़ी जी अच्छी जी जी जबरदस्त बात जी जी की जो आपने OIC को मुतहरक ना होने का आपने यहाँ पर बताया। तो इकबाल का विजन जी भी जी यही था, अगर आप देख लें तो यहाँ पर इस खित्ता के जी जी अंदर जी इकबाल की जो डेफिनेशन है मुस्लिम की या कौमियत की, वो मुस्लिम को एज ए उसके कॉर्नरस्टोन के तौर पर लेते हैं। तो इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अरब लीग जी जो है वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर सामने है, लेकिन OIC को एक बड़े इंस्टीट्यूशन के तौर पर जी जी सामने नहीं आ सकी। इसका रीजन वही था जो इकबाल ने आज से 70 80 90 साल पहले जो इकबाल ने बता दिया था कि जी आपको जी आपकी जो यूनिटी है, जो आपका कॉर्नर स्टोन है, वो कुरान है, वो हदीस है, ये जो जी जी इस तरह की जो हमारी एक फाउंडेशंस हैं, उसी की तरफ अगर हम रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। अगर आप एथनिक बुनियादों के ऊपर आप डिवाइड जी होते चले जाएंगे तो शायद हम वो चीज़ें हासिल हाँ नहीं कर बिल्कुल पाए जो इकबाल ने हमें आज से 70 साल पहले या उससे पहले इकबाल ने हमें दी थी। तो अभी हम कैसर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आज के फोर्थ स्पीकर की तरफ हम मूव करेंगे। जी कैसर भाई, जी जी आप जी अपना इनपुट जी ऐड शुक्रिया कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। जैसे कि रऊफ साहब ने बहुत अच्छे नुक्तों को छेड़ा, लेकिन जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है अल्लामा इकबाल के पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से हम अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करें। अगर हम जम्मू रीजन या इंडिया की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कि एक हिंदुत्व पार्टी, एक हिंदुत्व ग्रुप इस वक्त पावर में है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात से, कुरान की तालीमात से और जो उनके रहबर है उनकी तालीमात से दूर रखा जाए। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि एक गैप सा क्रिएट किया गया है मुस्लिम सेक्टर्स के बीच, जैसे शिया, सुन्नी, अहले जमाती वगैरह, ये चीजें हम लोगों में पैदा की गई है और ये चीजें पैदा करने में ये लोग बहुत ही आगे पहुंच गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे लगता है हम ख्वाब गफलत में फिर से सोए हुए हैं कि हम इन चीजों को अल्लामा इकबाल की तालीमात के मुताबिक रजिस्टर करने की कोशिश ही नहीं करते। तो वहाँ पे हमारे जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करना है, वो पॉइंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हम अल्लामा को पढ़ते ही नहीं है, हम अल्लामा के इकबाल की तरफ ख्वाब देखते नहीं है, हम उनके ख्यालात को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम हो, यूनिवर्सिटीज हो, इवन डेट में कश्मीर की बात कहूँगा, हमारा जो JNK है, जम्मू और कश्मीर से लेकर हम लोगों के बीच डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, हम सेक्टर्स में हो जाते हैं। जम्मू में हमारा मैंडेट फ्रैक्चर्ड है, 50-50 मैंडेट है। कश्मीर में हमारा मैंडेट 90 जवान भटके हुए है अपने दीन इस्लाम से, अपनी असली तालीमात से और अपने असली विजन से। अब हम ज़्यादा मजहब को ही आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि जो कश्मीर का इशू है ये एक कम्प्लेक्स इशू है। अगर कश्मीर के इस इशू के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल की तालीमात को हम बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें चैनलाइज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने थे, जैसे कि मियाँ इकबाल, सलाउद्दीन साहब, ये यहाँ पे अपने पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आप जैसे लोगों पे ये जिम्मेदारियां भी आयद होती है कि आप ओप्रेस्ड नेशंस में ओप्रेस्ड लोगों के लिए भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें जहाँ से अल्लामा की तालीमात, जहाँ से खुद ही को सरबुलंद किया जाए, जहाँ से अंदर का जो मादा है इंसान को, उसको जगाया जाए। तब जाके हम बात कर सकते हैं कि हम एक पीस प्रिवेल कर सकते हैं, हम एक कॉमन कंसेंसस प्रिवेल कर सकते हैं। तब जाके हम कह सकते हैं हमारे पास एक रिवोल्यूशनरी फोर्स हो सकता है, जिसकी अल्लामा इकबाल हमेशा ख्वाब देखते थे और जिसकी वो तायद करते थे। तो इसलिए अल्लामा फरमाते, जवानों को मेरी आह समर दे, फिर शाही बच्चों को बाल पर दे, खुदा आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अल्लामा का नूर बसीरत तभी आम हो जाएगा जब आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो साहिब सरवत लोग हैं, वो सामने आए ऐसी जगहों पे जहाँ अल्लामा बहुत दूर चले गए हम लोगों से। तो वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जाए, वहाँ पे ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्रिएट किए जाए, तब जाके हम लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, तब जाके रिवॉल्यूशन की बात हम कर सकते हैं। क्योंकि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक टैलेंट, लूप ऑफ टैलेंट पड़ा है कश्मीर में, जम्मू में, जो हमें ना
अल्लामा की तालीमात को लेके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, तब जाके है ना हम अपने आप को डिफेंड भी कर पाएंगे और हम अपने चैलेंजेस को ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे। वरना क्या बात, वरना एक चीज देखी जाती है कश्मीर में जहाँ अक्सर लॉकडाउन रहता है, जो कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन चलता आ रहा है, इसमें एक चीज ही देखा जा रहा है कि रिसेंट रिसर्चेस आए हैं कश्मीर से, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स ने रिसर्चेस किए हैं, यूनिसेफ ने रिसर्च किया है, उसके मुताबिक ये बात देखने को मिली है कि मेंटल ट्रॉमा यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर क्रिएट हो रहे हैं कश्मीरियों के जहनों पे। तो वो चीजें तब जाके हम कूप अप कर सकते हैं। एवरी टाइम हम हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते, एवरी टाइम हम मेंटल स्पेशलिस्ट को कंसल्टेंट तो नहीं, एकेडमिक्स का, इकबालियात का, दूसरी चीजों का, ताकि हम एक नए सोच को प्रमोट कर सके। वो सोच जब प्रमोट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम किसी हद तक अपनी चीजों को डिफेंड करके प्रमोट भी कर सकते हैं और चैलेंजेस को चैनलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कैसर भाई, आई ट्रूली एग्री, आपने जो नुक्ते उठाए वो बहुत ही अहम नुक्ते थे। खास तौर पर आपने जो वहाँ पे एक ट्रॉमास की बात की, हमारी मुस्लिम नेशन की बात की, और जो अप्रेस नेशंस हैं उसके हवाले से बात की, तो यकीनन दुनिया की बहुत सी कौमें जो हैं वो हज़रत अल्लामा इकबाल के जो है वो विजन के साथ उन्होंने दुनिया के अंदर बहुत ही जो अपने आप को एक सिचुएशन से निकाला, और जिसमें ईरान, टर्की की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है, जिन्होंने आपकी बातों से, आपके विजन से, आपकी फ़िलॉसफी से गाइडेंस ली। नो डाउट अल्लामा इकबाल कश्मीर से भी एक ख़ास मोहब्बत रखते थे, और इसका तज़किरा बारहा अपने इशार में वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल करते रहे हैं। अभी हमारे साथ जुनैद डार साहब भी मौजूद हैं, जो यकीनन आपकी कश्मीर की उस तरफ से, आपकी तरफ से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। मैं जुनैद डार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जुनैद डार साहब आपका स्पीकर और माइक ऑन है, आप हमारे नौजवानों को कश्मीर के हालात से जो है वो उनको जो है वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, यू आर ऑडिबल प्लीज। हाँ। तो मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपनी बात रखूँ इस बारे में। और जब बात हो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हैसियत की, तो हमारी तो वहाँ पे औकात ही नहीं है हम कुछ बोल सके, क्योंकि ये ऐसे शायर गुजरे हैं कि जिनकी छाप अभी तक भी पूरे कायनात में है। जो सबसे पहले मैं जब ये तो बात जवानों की हो रही है, तो मैं उनके एक कपलेट से स्टार्ट ही करूंगा कि उन्होंने जब बताया था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कदम। ठीक है, तो वो जो नौजवान है, वो जो नौजवान है, उनकी जरूरत है अभी। वो अभी मैं कहूँ पूरे वस्त एशिया में हो या काफी अशद जरूरत है। क्या? क्योंकि जब हमारी इतने से स्कॉलर गुजरे हैं, ऐसे मैथमेटिशियन गुजरे हैं, ऐसे फिलोसफर गुजरे हैं कि जमाना अभी तक उनके दिए पर फख्र करता है, पर बड़ी बदकिस्मती है कि कहीं मतलब दहाइयों से हम जो मुसलमान हैं, अपने इस जो हमारा एक मिशन था, जिसके लिए हम इस कायनात में हमें चुना गया था कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। क्या है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो बंदा जो अपनी सोच पे काबू न कर पाए, उसमें और हैवान में, जो हमारे चार पाँव होते हैं, जो जानवर होते हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं होती है। जो इंसान अपनी सोच पे काबू ना कर पाए, और हमेशा उनकी बात रही है खुदी पे उन्होंने हमेशा ज्यादातर जोर दिया है, जब वो कहते थे कि हमें ऐसा एक माहौल कायम करना है कि हम दूसरों की चीजों को नकल ना करें, हम अपनी असली जिंदगी जी लें। और वो जो असली जिंदगी है वो हम अभी भूल चुके हैं, पूरे मुसलमान अभी वो जिंदगी भूल चुके हैं कि वो असली जिंदगी क्या है। क्योंकि उन्होंने हमेशा, बिकॉज he has always criticized
साइड ऑफ जो भी वेस्टर्निज्म का यहाँ पे कल्चर था, मतलब उन्होंने कहा कि तेरे सोफे हैं अफगानी, तेरे ये सॉरी ये तेरे कालीन है ईरानी। तो वो उनका कहने का जो मतलब था कि जो भी चीजें हम बाहर से लाते हैं, मतलब जो भी चीजें हम दूसरों के बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को हम अगर अपनी मतलब खुद ही यहाँ पे कुछ कर सके, खुद ही मुसलमान कौमें कुछ ऐसा करे, अपनी जगह पे इन चीजों को तैयार करें। मतलब ये तो उनका कॉमर्स का एक मैं पहलू बता रहा हूँ आपको। हाँ जी जुनेद भाई, मैं चाहूँगा कि आप एक तो हमें बताइएगा कि हमारे कश्मीर के जो उस पार के आप जिस तरफ आप हैं, वहाँ पर अल्लामा इकबाल के थॉट के हवाले से नौजवान किस हद तक जो है वो फॉलो करते हैं और कहाँ तक उनको कोट किया जाता है, और क्या वो उसी तरह एज ए इंस्पिरेशन, जैसे हम यहाँ पर अल्लामा इकबाल को एज ए इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या जब यही सिचुएशन हाँ वहीं पे हाँ भी है? देखो, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इंस्पिरेशन माना जा रहा है, वैसे ही ये तो खाली इस पार की कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है कि जब जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान कौमें हैं वहाँ पर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात ज़रूर होती है। और जो आपने कोर्ट की बात की, तो कोर्ट में कहूँगा कि कोर्ट तो हर जगह पे होते हैं। शायर तो उन्होंने अल्लामा इकबाल तो बड़े इसके मुखालिफ थे, वो खुद को शायर नहीं मानते थे। अब ये चीज़ है कि शायर को हर जगह पे कोट करते हैं, पर ये चीज़ है कि अमल होनी चाहिए। वो जो अमल है वो हम मतलब आजकल के दौर के मुसलमानों में वो अमल कहीं पे ज़ाहिर नहीं है। क्योंकि जो अल्लामा इकबाल का एक तसव्वुर था, उनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो जो उसका मेन प्रिंसिपल था वो तौहीद पे था। तो और जो तौहीद का माने हैं वो तो मतलब इक्वालिटी, सॉलिडैरिटी, फ्रीडम एंड द एसेंस ऑफ तौहीद एज़ अ वर्किंग आइडिया एंड द स्टेट फ्रॉम द इस्लामिक, जो भी मतलब इस्लाम का एक पर्सपेक्टिव है, वो जो तौहीद का के जो माने हैं, वो जो हम अभी देखते हैं कि कोई बोलता है सॉलिडैरिटी, इसके इक्वालिटी चाहिए या कास्ट सिस्टम ब्रेक कर लो, इन चीज़ों का नाम ही तौहीद है। अब क्या है कि ये डिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, डिकोड हो रहा है, मतलब बाकी के मुसलमान गैर मुस्लिम जो है वो इससे निकाल रहे हैं कुछ चीज़ें कि नहीं, अब इक्वालिटी की बात हो रही है, अब कास्ट सिस्टम की बात हो रही है, अब ये कास्ट क्रीड रिलीजन मतलब रिलीजियस पे बात हो रही है। लेकिन जो हमें अपनाना था वो गैरों ने अपना लिया, और वही वजह है कि हम पीछे चले आ रहे हैं। जितने भी हमारे मतलब जो हमारे पीर बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने हमें अपने तालीमात से नवाजा था, हम उन तालीमात को भूल के दूसरी कुछ चीज़ों में मशगूल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारी कौम जो है दिन ब दिन पीछे चली जा रही है। अच्छा जुनेद भाई, एक सवाल आया अभी, ये जो हमारे यंगस्टर्स हमें जो फेसबुक और दूसरे मीडियाज के ऊपर देख रहे हैं, सवाल है मोहम्मद तनवीर अवान का, और ये लिखते हैं कि जुनेद साहब से कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में जो राय लीजिए। देख हाँ हाँ, वो तो अभी खैर मैं सहाफ़ी हूँ, पेशे से मैं सहाफ़ी हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि लोगों को मुझसे ही उम्मीद होगी कि ये ऐसे सवालों का जवाब दे। तो बिल्कुल जैसे भी हालात यहाँ पे अभी गुजर रहे हैं, ये तो मतलब कश्मीरी कौम की वो क्या कहे बदकिस्मती है कि इन हालातों को देखना पड़ रहा है। ये पिछले 70 सालों से चला आ रहा है ये किस्सा, और क्या पता कि ऊपर वाले ने कितनी आगे तक हमारे मुकद्दर में ये चीज़ें लिखी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, और जो भाई हमें अभी फ़ेसबुक या बाकी सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हैं, वो भी हमें दुआओं में याद रखें और हमारी कौम के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी कौम पे अपना फ़ज़ल फ़रमाए। और जो हालात हैं वो बड़े नाज़ुक हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि कल नहीं परसों ही एक हादसा यहाँ पे पेश आया, जहाँ पे हमारे कश्मीरी नौजवान अपनी जान गंवा बैठे, और उस हादसे में 15 से 20 मकानात भी ऐसे खाकिस्तर हो गए, जो कि आग के नज़र हो गए वहाँ पे। और ये चीज़ें
मतलब यहाँ पे अब रूटीन नॉर्मल सी चीजें बन गई है कि ये चीजें होती आ रही है, ये आज की बात नहीं है या अभी एक तरफ से कोविड की बात चल रही है, मतलब पूरा दुनिया इस वबा में मुब्तला हुआ है और कश्मीरी लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ों का भी सामना कर रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल है। कश्मीर के जो माँ है यहाँ पे, कश्मीर की जो बहनें हैं, कश्मीर के जो भाई हैं, वो अपने लख्त जिगरों को यहाँ पे खो रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी इस अजाब से बाहर निकाले। और कोशिश हमेशा जो नौजवानों की होनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे कि देखो, ना ही किसी मतलब जुल्म की कोई कहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ऐसा सुबह भी आएगा। और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी मतलब जो नए सुबह की वो बात कर रहे थे, तो उनका उस है उसकी किरण मुझे जो यहाँ के नौजवान हैं, जो मेरी कौम के नौजवान हैं, उनमें नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हमें भी उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान हैं, हम जो है इस कौम के जो मिल्लत है, हम इस मिल्लत के जो नौजवान हैं, वो सब आगे आए और इंशाल्लाह ताला इस वबा मतलब इस वबाकारी से भी निकले और हम अपनी जुल्म ज़्यादती से भी बाहर आ जाए। जुनैद भाई, आखिरी सवाल, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो ज़्यादातर सवाल तो आपकी तरफ ही जो है वो आ रहे हैं सिचुएशन के हवाले से। मोहम्मद शेराज हैं, ये लिखते हैं कि काशिफ भाई जुनैद भाई से पूछें कि कर्फ्यू की सिचुएशन सेम है या उसमें कुछ रिलैक्सेशन आई है? नहीं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता ही है कि कश्मीर में कर्फ्यू कोई नई बात नहीं है, तो पिछले कई दहाइयों से ऐसे ही चला आ रहा है। अब जो आज का कर्फ्यू है तो इसमें भी बड़ी ज़्यादती हो रही है। कहीं-कहीं आपने अगर रिपोर्ट पढ़े होंगे कश्मीर से, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सहाफ़ियों को भी मारा गया, बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर हैं या बाकी कर्मचारी हैं जो बाहर घर से निकलते हैं, हमारी मतलब लोगों की खिदमत करने के लिए जो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे भी ज़्यादती हो रही है। क्या मतलब ये तो एक अदरवाइज़ ये जो एक यहाँ पे अभी कर्फ्यू चल रहा है, ये बाकी जो यहाँ पे स्टेट हैं इंडिया की, वहाँ पे भी ऐसे कर्फ्यू चल रहे हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे कुछ अलग चीज़ ये है कि जो ज़्यादती हो रही है वो तो हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और जो लोग हैं वो इन ज़्यादतियों का सामना पिछले कई सदियों से चले आ रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं इन ज़्यादतियों का सामना। तो यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही है, चाहे वो सहाफ़ी हो यहाँ के, चाहे वो यहाँ के डॉक्टर हो या चाहे वो यहाँ पे कोई भी कर्मचारी हो जो हमारी खिदमत के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही है घर से बाहर आने में और घर से और अपने फ़राइज़ अंजाम देने में। जी, जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, चूँकि हम अल्लामा इकबाल के मानने वाले हैं और इंशाल्लाह हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंशाल्लाह एक दिन जो है वो हम उस पार आपसे इंशाल्लाह चाय पीने के लिए लाज़मी आपके पास आएँगे और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब हमारे पास आप यहाँ पर इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएँगे और वो बड़े अच्छे दिन होंगे। अभी जो है वो कुछ इंशाल्लाह। सवालात हैं ऑडियंस के, मैं डायरेक्टली कुछ सवालात लेने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है कि मरियम हैं, मरियम सजाद, उनका सवाल है सलाहुद्दीन साहब से। सलाहुद्दीन साहब सर मौजूद हैं हमारे साथ। सर, मरियम सजाद का सर सवाल है आपके लिए सर, इकबाल सलाहुद्दीन साहब से। सर मरियम सजाद लिखती हैं, हाउ वी इंट्रोड्यूस इकबाल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मीडिया, कि मीडिया के ऊपर जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है या उनका जो तसव्वुर है उससे यंगस्टर्स कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। मरियम सजाद हैं सर। ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है जुनैद साहब की और कैसर की बातें सुनकर, एंड मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी जो है ये हर वक्त हमारे जो दिलों में है, इनसे ये दुआ निकलती है। खानदान का ताल्लुक कश्मीर से ही है, मेरे वालिद का भी और मेरे। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, अल्लामा खुद पुरुमीद हैं कि कश्मीरी जो है एक दिन के होंगे और अपनी आज़ादी जो है वो हासिल करेंगे। जैसे एक हमारे भाई ने कहा कि अलीगढ़ से जो बोल रहे थे कि पीसफुल एफर्ट्स भी होनी चाहिए, लेकिन जब पीसफुल एफर्ट्स काम नहीं करती तो उसके बाद आपको स्ट्रगल किए बगैर, फिजिकल स्ट्रगल किए बगैर आपको कोई आज़ादी, हुकूक या आज़ादी
اور آج کل کے حالات دنیا کے اندر ان کی جو نقطۂ نظر یا ان کا جو سب سے ان کے لیے آپ وہ سمجھ لیں کہ what is money. اس وجہ سے آپ وہ دیکھیں کہ 1 سال سے تقریباً کشمیر میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں. کھانوں کی تو آپ وہ بات ہی نہ کریں. آپ مطلب میں کیا کہوں کا جو ہے وہ جو حامل قرآن ہے یا جن لوگوں کے اوپر جس زبان میں قرآن ہے وہی تو ہماری جڑوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں. لیکن ہم ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے ہمیں خود جو ہے وہ اسٹرگل کر کے اور اپنے راستے جو ہیں وہ خود تلاش کرنے پڑیں گے اور ان کے اوپر آو آؤٹ کرنا پڑے گا. ہماری بیٹی پوچھ رہی تھی کہ اس کو میڈیا پہ کس طرح کیا جائے. مجھے مشکل نظر آتی ہے کہ اگین اس قسم کے جو تصورات ہیں یا اس قسم کی فکر جو ہے وہ اتنی پروموٹ ہوتی نظر نہیں آتی. باقی آپ کے سوشل میڈیا رہ جاتا ہے جس کے اوپر کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ اپنے طور کے اوپر آپ خود اس کو سمجھیں اور اس کو پروپوگیٹ کرنے کے ان یور اون ایریا آف انفلوئنس جو ہے اس کو آپ وہ کرنے کی کوشش کریں. فی الحال تو آپ یہی کر سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کا کہاں سے, انڈیا سے آپ کا تعلق ہے یا پاکستان سے ہے. لائک آئی سیڈ کہ علامہ کا فلسفہ اتنا زیادہ وہ فورس ہے انڈیویجول میں اور پوری نیشن میں پیدا کرتا ہے. آپ لوگوں کی حیثیت جو ہے وہ پھر ایک رعایا کی نہیں رہتی. آپ جو ہے وہ بنتے ہیں اپنا سویلینز, مطلب کہ آپ ایکول سٹیزنز بنتے ہیں. There's a difference between citizens and رعایا. رعایا کو رول کیا جاتا ہے اور جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے ایکول رائٹس ہوتے ہیں اور سارا ہیومن رائٹس. اور جو ہے یہ بالکل جنید نے صحیح بات کی کہ علامہ کی جو ساری فکر وہ توحید سے ہی نکلتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو علامہ کی انٹرپریٹیشن ہے توحید کی یا قرآن کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کی اسماء حسنہ کی اپنا ان کی سنت کی, تو وہ انٹرپریٹیشن آپ کی ایک اجتہادی سوچ کے اوپر مبنی اور ہماری جو زیادہ تر سوچ ہے وہ کنزرویٹو یا وہ ایک تقلیدی سوچ جو ہے اس سے جب وہ کلیش ہوتا ہے تو پھر وہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ علماء کی فکر کو رائج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. لیکن میرا ان کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بھی جتنا جو بھی پڑھا لکھا ہے اس وقت یہ جو اقبال کی فکر ہے اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کو آگے لے کے جانے والی کوئی سوچ موجود نہیں ہے پوری دنیا اسلام. یہ میں آپ کو بات گارنٹی سے کہتا ہوں. اس میں آپ چاہے آپ کو دیکھیں, آپ کسی کی بھی فکر کو یا کسی عالم کو یا کسی اسکالر کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو وہ پاسٹ کو پریزنٹ کے ساتھ لنک کر کے آپ کو فیوچر میں کس طرح وہ دیکھیں. اگر تو وہ آپ کی تھاٹ کے اندر, آپ کی ترقی کے اندر کوئی اسٹیگنیشن جو ہے اس کی جو ہے وہ بیچ میں حل ہو رہی ہے, پھر اس کی اقبال کی سوچ کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے. دوسرا میں یہ کیسے کی یہ بات کو میں ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ خطاب بجاوید مومن و پیشے کسان بستن مومن و خداری و فقر و وفاق. تو ایک تو کہتے ہیں کہ جب آپ کا لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ کا بلیف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے خوف نہیں کھانا. دیٹ مینس end of every kind of fear other than God and end of all kind of superstitions جس کو ہم اگر آپ کا خدا کے اوپر اتنا یقین ہے تو پھر وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہونا, خدا کے اوپر اتنا جو آپ کا وہ ایمان اس کو کلیم کرنا, تو پھر جو ہے آپ نے جا کے کسی اور سے جا کے آگے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے. تو پہلا وہ آپ کو غیرت کا درس دے رہے ہیں. اگر خدا کے اوپر آپ کا اتنا پختہ یقین ہے تو پھر آپ کے اندر غیرت جو ہے وہ انہیرنٹ ہونی چاہیے. اور غیرت جب انہیرنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس سے آپ کے اوپر کریٹیوٹی کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتے, آپ اپنی چیزیں, اپنی ضرورت آسائش خود پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی اپنی خرابیاں بھی بتا رہے ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہونا, اس توحید کے اوپر ایمان ہونا جس کی وہ جنید بتا رہا تھا, ہیومن سولیڈیرٹی, ہیومن ایکوالٹی اینڈ ہیومن فریڈم کے اوپر, اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان ہونا, رسول اللہ کے اوپر ایمان ہونا, قرآن کو جو ہے فالو کرنا. تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر غدار پیدا اور یہ پھوک اور ننگ ہونا مسلمانوں کے اندر, یہ وہ سب سے بڑا جو مسئلہ بتاتے ہیں مسلمانوں کا جاوید نامہ کے اندر, وہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہماری قوم نے سب سے زیادہ اگر آپ یہ دیکھیں گے اپنی ہسٹری میں, میر جعفر, میر صادق, یہ تو 2 بڑے نام آ گئے, لیکن ابھی بھی ہمارے جو ہے قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری اجتماعیت کو ختم کرنے یا اپنا مادی جو ہے جو ہے وہ ہماری ٹانگیں کھینچتی ہیں. Other thing جو میں آپ کو 2 پوائنٹس میں آپ کو بہت واضح محسوس کرنا چاہتا ہوں. ایک, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ شیعہ اور سنی کے اوپر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی ہسٹری آپ کی شیعہ اور سنیز نے بڑا نقصان پہنچایا. شیعہ سنی کی وجہ سے آپ کی خوارزم کی کنگڈم جو ہے وہ آپس کی انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے چنگیز خان کے ہاتھوں کو گری یا خان کے, اس کے بعد بغداد آپ کا گرا شیعہ سنی اسکرمش کے اندر وہ جو ہے وہ ڈفرینسز کی وجہ سے. اینڈ سو مچ سو کہ آپ کے جو تھے پھر جو آٹومنز تھے اور جو صفوی حکومت تھی آپ کی جو امپائر تھی ایران کے اندر, یہ ساری عمر آپس میں جنگیں کرتے رہے. اور ایون سو مچ ہو کہ اورنگزیب جو تھا وہ گولکنڈا اور بیجاپور کی کنگڈمز کے ساتھ وہ لڑتے لڑتے اس نے پوری مغل حکومت کو جو تھا وہ بینکرپٹ کر دیا, اس کی وجہ سے ہو گئی. اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک سنی آرتھوڈاکس کا ریپرزینٹیو تھا اورنگزیب, اور بیجاپور اور گولکنڈا کی جو کنگڈمز تھی وہ شیعہ کنگڈمز تھی. اب یہ ساری آپ کی ہسٹری پچھلے 1000 سال سے زیادہ جو ہے آپ کی وہ پھیلی ہوئی. ماڈرن ٹائمز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کی پاکستان کی جو فارمیشن ہے یہ ایک شیعہ اور سنی کی ایفرٹ کی وجہ سے عمل میں آتا. قائد اعظم واز اے شیعہ, اسنا اشری شیعہ, اقبال واز اے سنی. یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اقبال تو ایز اے سنی فوت ہوئے, قائد اعظم ایز اے شیعہ اپنی بلیف کے مطابق جو بھی تھے وہی رہے. اقبال ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بٹوین مذہب اینڈ بٹوین دین. اس کو دونوں کی انگلش میں ٹرانسلیشن ریلیجن ہی مطلب ہے کہ آپ کا جو ایک پرسنل نقطۂ نظر, آپ نے کسی فرقے کو فالو کرنا ہے, کریں نہ کریں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے, ٹخنوں سے اونچی آپ نے شلوار پہننی ہے, یا جو بھی آپ نے کرنا آپ کو, وہ آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے. لیکن دین کیا ہے؟ اسلام ایز اے ہیومینٹی irrespective of their caste, religion اور creed. اور اسی کی بیسس کے اوپر یا اسی فکر کے اوپر جو تھے اقبال قائد اعظم کے پیچھے کھڑے ہوئے, انہوں نے اس کو اپنا لیڈر مانا, اور انہوں نے کہا جب پنڈت نہرو ان کے گھر وہ آیا ان کو وزٹ کرنے, اور اس نے علامہ کو یہ بات کہی کہ علامہ اصل میں تو قائد مسلمانوں کے لیڈر تو آپ ہیں, قائد اعظم تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی تو حیثیت ہی نہیں. وہ بیماری کی حالت میں وہ اپنے بستر پر اٹھ کے بیٹھ گیا, اور انہوں نے وہ نہرو کو کہا, اب وہ دیکھیں گے کس طریقے سے جو آیا, وہ نہرو آ کے تو زمین پہ بیٹھ گیا. علامہ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے, تو آؤٹ آف ریسپیکٹ شو کر کے, تو بہرحال وہ ان حرکتوں سے شاید علامہ کو میرے خیال میں اکھاڑ نہیں جا سکا. لیکن اس کا علامہ کو یہ کہنا کہ بھی آپ تو مسلمانوں کے اصل لیڈر تو آپ ہیں اور جناح کی کوئی حیثیت نہیں, تو علامہ وہ غصے میں آ گیا, اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم کیا چاہتے, تم یہاں پہ کیا کرنے ہیں, تم میرے اور جناح کے درمیان تم ایک جو ہے وہ ایک فاڑ پیدا کرنے آئے, تم ہمارے درمیان. تم یہ جان لو کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی لیڈر ہے, اور وہ محمد علی جناح ہے, اور میں اس کا ایک ادنا سا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ آپ کی جو مرضی بلیف. اب پاکستان کا جو بننا تھا, اب 80% تو سنی تھے نا اس خطے کے اندر, وہ کھڑے ہوئے ہی نہیں ایک شیعہ کے پیچھے.
آپ نے ایک جوائنٹ ایفرٹ کی, آپ نے اپنے اس جو ہے یہ مذہبی نفاق کو, اس فرقہ واحد کو آپ نے چھوڑا, اسی پلیٹ فارم کے اوپر, اسی بیسس کے اوپر آپ اب کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ علامہ اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے کسی ایک فرقے کے لیے ملک نہیں بنایا, نہ یہ سنیوں کے لیے بنا, نہ یہ شیعوں کے لیے بنا, مسلمانوں کے لیے بنا. اور مسلمان وہ جو جنید نے جو انٹرپریٹیشن بنائی ہے, اس انٹرپریٹیشن کے اوپر آپ کو ساروں کو جو ہے وہ آپ کے 72 فرقے جو ہیں وہ علامہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ اکٹھے کرتے ہیں, اور انہوں نے پریکٹیکلی آپ کو یہ دونوں نے آپ کو عملی طور کے اوپر یہ کر کے دکھایا ہے. سو ابھی تو میں تو یہی میرے ذہن میں تھا, اگر اور کوئی سوال ہوں تو سر تین چار سوالات سر ابھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے سر ہم چونکہ رؤوف صاحب چونکہ وہ جلدی میں شاید جانا چاہ رہے ہیں, تو ایک سوال ان کے لیے چونکہ موجود ہے, میں نے ان کا 1 منٹ کے لیے اسٹے کروایا تھا, تو ابھی اس سوال کے بعد سر مزید پھر ہم کیری آن کریں. جی آفاق, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا. السلام علیکم, میں آفاق بول رہا ہوں, اور میرا آفاق بیسیکلی مردان سے ہیں, کے پی کے سے, اور ان کا سوال تھا. اور آفاق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا, آن لائن آپ. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کافی عرصے سے مطلب مذاکرات سے کشمیر کے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے نا, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس مذاکرات کے ساتھ ہمارا ایک الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے, کہ ہم مطلب ایک نیو الٹرنیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اس کشمیر مسئلے کو دیکھ سکیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے ہی پوچھ رہے ہیں نا یہ کوسچن. مذاکرات کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ وہ قائد اعظم کو دیکھیں تو انہوں نے جو کہا وہ قانونی طور کے اوپر ہی وہ پاکستان کو کہا وہ کر لیا تھا, حالات مختلف وہ ہو چکے ہیں. اینڈ جو کشمیر کے مسلمانوں کی صورتحال ہے, اٹ از ڈفرنٹ ناؤ. میرے خیال میں اتنا زیادہ ریپریشن تو شاید انہوں نے کبھی بھی فیس نہیں کیا. جو ہے ان کو جس طرح انہوں نے علی گڑھ کے نوجوان نے کہا ہے کہ اپنا جو ہے ہمیں ایک پیسفل طریقے سے اس کو سولوشن اس کی وہ کرنی چاہیے, پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو تھا وہ اس کے اوپر تیار ہوتے تو شاید پاکستان بنتا ہی نہ, شاید قائد اعظم بھی نہ بناتے, علامہ اقبال بھی نہ یہ سوچا, وہ پیسفل ہو گیا. تو but the thing is that you should work for it. اگر وہ نہیں تو پھر آپ کو آلٹرنیٹ تو پھر وہی رہ جاتا ہے, پھر ایک وہ فزیکل اسٹرگل ہی رہ جاتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں. آپ کو تو کسی نے آ کے جو ہے آزادی تو باہر سے تو نہیں دلوانی. اسی سوال کا سر ہم جواب لے لیتے ہیں عبد الرؤف صاحب سے, جو کہ اسی سوال کو رسپونڈ اب کریں گے عبد الرؤف صاحب. عبد الرؤف صاحب بیسیکلی یوتھ ریفارمز علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں. تو رؤف بھائی آپ کائنڈلی جی اصل میں کشمیر ایشو جو ہے نا یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. اس کو ایک جی ہاں میں سن لیا, میں نے سوال تو یہ ہے کہ مطلب آگے اس کی کیا وہ ہونی چاہیے, کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کیا تو اس کا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے کیا کیا پرسپیکٹیوز ہیں. مطلب کشمیر ایشو کو لے کر ہم کسی ایک کی بات کو لے کر ہم اسی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں, کہ جیسے مطلب پچھلے دنوں سے کافی دنوں سے یہ چرچا میں ہے کہ جیسے افغانستان سے امریکہ کی آرمی جو ہے وہاں سے چلی گئی ہے یا جا رہی ہے, تو وہی ویسی سچویشن جو ہے یہاں جموں کشمیر کے لیے بھی بن جائے گی ایسی, کہ رجسٹ ہم اتنا کریں گے تاکہ جو ہے وہ مطلب ملیٹنسی یا اس طرح سے جو ایک فورس ہم جو رجسٹ کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک فرق پڑے گا کہ جو انڈیا کی آرمی کو. لیکن ہمیں اس سے پہلے ہمیں انڈیا کی طرف سے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے لیے جموں کشمیر ایک مطلب ٹیریٹری نہیں ہے, وہ اصل میں یہ یہاں پہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے انڈیا کا, جو بہت زیادہ ہمیں مطلب ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں, کہ یہ ایشو افغانستان اور امریکہ کا نہیں ہے, کہ جو ہزاروں میل دور ہے افغانستان سے امریکہ, اور اس کی سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ الگ ہیں. لیکن انڈیا جہاں پہ ہمیں مطلب جہاں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کافی یہی ایک 70 سال سے انڈیا جو ہے پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے, اس کو خطرہ ہے, مطلب سیکورٹی ریزنس ہیں افغانستان سے, اب جو طالبان کا رائز ہوا اس کی وجہ سے, اور جو پاکستان کو جو وہ کانسٹنٹلی ایک اپنا پوٹینشیل انیمی مان رہا ہے. تو ایسے میں ہم یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری کتنی زیادہ رجسٹ سے بھی اگر یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا تو پھر ہمیں وہ کون سے طریقے اپنانے چاہیے, مذاکرات سے یا ڈبیٹ ڈسکشن سے, یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ اویئر کر کے
उनको मतलब इंटरनेशनल समिट से उनको मिलाकर उनके जो डिबेट डिस्कशन से ऐसी जो तरीके अपनाने की जरूरत है वो कॉन्स्टेंटली हो, वो साइड बाई साइड अगर मूवमेंट चल रही है जैसे जो मूवमेंट चल रही है कश्मीर में, उसके साथ साथ में ये जिम्मेदारी मतलब हम नहीं कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की है कि वो इस तरह से पीस के प्रोसेस है ना कि ताकि पूरी दुनिया को एक जो नैरेटिव जो है वो बहुत जरूरी है कि नैरेटिव जो ये दिया जा रहा है कि हम सब टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम टेररिस्ट है, फिर पाकिस्तान सारा टेररिस्ट है, मुस्लिम सारे ही टेररिस्ट हैं, ये एक नैरेटिव जो है ये बहुत खतरनाक है। इससे सबको ये लगता है कि हम जो है वो अपनी सोच को सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, हमारा हाँ बस वो तलवार का तीर का और उन्हीं चीजों को जो है एक तरह का जो हमारा नैरेटिव है, तो इस नैरेटिव को भी चेंज करना, इन सब चीजों को सबसे पहले जो है इस सब इशू को हर तरफ से पढ़ने की और हर तरफ से कि उन सारे जो 70 साल से जो चला आ रहा है उन सब चीजों को एक एक नुक्ते को ढूंढने की जरूरत है कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। आज जो जम्मू कश्मीर में जो किया जा रहा है 370 टूटा, वो इसलिए टूटा कि 1990s में जो है वहाँ पे पंडितों की जो है वो वहां से माइग्रेट किया गया, उनके साथ जुल्म हुआ, तो आप उनका बदला ले रहे हैं। तो ये सब चीज जो है तारीख में जो गलतियां हुई हैं, तो उनको देखकर सबकी तरफ से फिर इनके ऊपर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, और फिर अपोजिशन जो अगर कोई गलत जो अपनी तरफ से कोई राय दे रहा है उसको हमें मतलब सुनना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उन सबको देखकर ही हम कोई किसी मसले के हल तक निकल सकते हैं। कि अगर हम यही एक सोच लें कि शायद अमेरिका की तरह जो है इंडिया भी यहाँ से निकल जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये चीजें मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सोच, उनकी वो यही है कि यहाँ से हमें खतरा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है सोच कर ही समझ कर ही हम सब आगे चल सकते हैं, ये सबको सोचना है इन सब चीजों को। पाकिस्तान का क्या इसमें वो पर्सपेक्टिव है, जम्मू कश्मीर की आवाम का खुद का क्या है, तो फिर कोई एक ही ऐसा पीस का जो है वो जो सबको हो मंजूर हो, ताकि एक तरह का हल निकल जाए, वो वही होगा जो सबकी राय के साथ होगा। किसी एक की तरफ से भी जो है इसका हल निकलने वाला नहीं है, कि जो हम 30 साल से जो 1989 के बाद से हम देख रहे हैं जो मूवमेंट चल रही है, उससे उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, बजाय इसके कि हम और ही ज्यादा फंस रहे हैं, और ही ज्यादा हम मतलब मुश्किलों में हम गिरे जा रहे हैं। या तो एक तो ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई फैसला हो तो वो एक हो सकता है, दूसरा ये है कि हमें उस तरह से चलना है कि वो कम से कम हमारा नुकसान हो, कम से कम जानों का, माल का, इन सब चीजों का कम से कम नुकसान हो, और साथ साथ मूवमेंट जो है वो चलती रहे, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम एक ही तरह की सोच ये रखेंगे कि मतलब रेजिस्ट करके ही आर्म्ड रेजिस्टेंस हो, उससे शायद उतना ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलने वाला। जी थैंक यू रऊफ भाई, आप हमें जो आगाह कर रहे थे कश्मीर के हालात के जी हवाले जी से और रिफॉर्म्स के हवाले से। इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश होगी कि किसी दिन स्पेशली आपके साथ हम एक फोरम का इनेकाद करें, और जो यूथ रिफॉर्म्स के हवाले से आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में हम पाकिस्तान के नौजवानों को, आपकी राय को इंशाल्लाह वो सामने रखेंगे। अभी हमारे जी साथ बिल्कुल, जरूर जरूर। अभी हमारे साथ सैयद मुजाहिद शुक्रिया, मैं गिलानी जा साहब। सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, और इंशाल्लाह आपके साथ जज़ाकल्लाह, रब्ता रहेगा। जज़ाकल्लाह, अबर टू आसिफ जज़ाकल्लाह खुर्शीद खैर। भाई, अबर टू आसिफ खुर्शीद भाई हमारे साथ सैयद मुजाहिद गिलानी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कश्मीर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और पिम्स इस्लामाबाद के अंदर रजिस्ट्रार भी हैं, एज ए जो है वो आईसीयू स्पेशलिस्ट भी हैं। आजकल कोविड के हवाले से जो है वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। डॉक्टर साहब वेलकम ऑन बोर्ड, एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद कुछ लम्हे हमारे लिए निकाले। और अवर टू यू, हमारे नौजवानों को आगाह कीजिएगा कि जब हम इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही देखते हैं, कश्मीर के हालात देखते हैं, और नौजवानों के चैलेंजेस देखते हैं कश्मीर के नौजवानों के, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह से एक मौका दिया, और बिखुसूस इतना माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इस तरह के पैनल में मुझे भी बात करने का एक मौका मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं कश्मीर के हालात की, और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के हालात की, और जब हम इकबाल का जो एक नज़रिया है और इकबाल की जो एक फ़िक्र और सोच है उसको एक्सटेंड करते हुए हम मकबूजा कश्मीर को उसका इतलाक़ करते हैं, तो हमें कई चीज़ें नज़र आती हैं कि उनका इतलाक़ बखूबी मकबूजा कश्मीर के हालात व वाक़यात पे होता है। और मैं एक जो बहुत कहते हैं कि जो मशहूर है या जिसके बारे में
शायद हर कोई बात भी करता है, जो इकबाल की खुदी का जिस तरह जिक्र किया जाता है, तो मैं उसको वाक़ईतन मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक्सटेंड करते हुए, जो मेरे वो भाई जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जिस तरह से इस हवाले से बात की, तो इस बात पे मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक़ हूँ कि जो कश्मीरियों में एक एहसास और साथ-साथ कश्मीरियों में एक सेल्फ सस्टेनेंस होने की ज़रूरत, एक सेल्फ रिलायबिलिटी होने की ज़रूरत, वो जो खुद ही एक उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि ये जो एक आज़ादी की जंग है, जो एक तहरीक आज़ादी है, जो हिंदुस्तान की जो एक इल्लीगल वहाँ पे ऑक्यूपेशन है, उसके खिलाफ तो हर कश्मीरी उठ खड़ा होता है। तो वो उठ खड़ा जो होना है, वो उन कश्मीरियों के अंदर एक अपने अंदर से एक जज्बा निकलने की ज़रूरत है कि हाँ, ये हमने खुद करना है। पहली बात तो ये है कि वो जो आउटसाइड या पेरिफेरल रिलायंसेस हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहला भरोसा तो आपको अपनी ज़ात पर, अपने रब पर होना चाहिए, जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है। हाँ, साथ ही साथ जो मैं दूसरी बात जिसको मैं सेकंड करता हूँ, बल्कि एग्री करता हूँ इस हवाले से बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो भी वहाँ के कश्मीरी हैं, और जहाँ तक हम इस तहरीक की बात करते हैं, उन मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी भाइयों और बहनों से मजीद किसी भी किस्म का मुतालबा करना, ये समझना कि नहीं वो अब अपने आप को कट मरेंगे, वो वहाँ पे अपनी जान बिल्कुल, जितने नौजवान हैं वो शहादतें वहाँ पे जो है उसका जाम नोश कर लेंगे, तब कहीं जाके आज़ादी मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात होगी कि उन मकबूजा कश्मीर में रहने वालों से मजीद मुतालबा किया जाए। ये आप ही ने लड़ना है, आप ही इसके ऊपर शहीद होंगे, और बाकी तमाम जगहों से सिर्फ और सिर्फ एक बातों की हद तक इसके ऊपर आपको थपकी दी जा सकती है। दो तो ये इंतहाई अहम बातें हैं। तीसरी जो अहम बात है, जो मैं समझता हूँ कि देखिए, अल्लामा इकबाल का जो एक फ़लसफ़ा था, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी एक भाई ने बात की है, वो मज़हब के हवाले से। तो वो मज़हब हम देखते हैं कि जब अल्लामा इकबाल की वफ़ात होती है, करारदाद पाकिस्तान से भी पहले की बात है, तो उसके बाद से आज तक हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं। उसके बाद से आज तक हम ये देखते हैं कि अगर 1947 में बरे-सग़ीर के मुसलमानों के एक फैक्शन का एक मतलब जो उनकी एक आबादी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हिस्से में थी, उसको अपनी मंजिल मिल जाती है पाकिस्तान की सूरत में, तो अभी भी वहाँ बरे-सग़ीर में बसने वाले मुसलमान उसी कलमे, उसी नज़रिए की बुनियाद पर दोबारा से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। और यकीन जानिए, कई मुदब्बिरों का, कई मुफक्किरों का पिछले साल जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल के तहत बहुत कुछ मामलात गड़बड़ हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि शायद अब वक्त आ गया है दोबारा से कि एक नई रियासत जो है उसकी तख्लीक, उसके क़याम का वक्त आता है। ये तमाम बातें जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो वहाँ हिंदुस्तान से उठ के आई हैं। मैं बिलखुसूस ये के हवाले से बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान से उठ के आई हैं, और ये वो हिंदुस्तान के मुसलमान अब इस तरह की बातें हम देखते हैं, सुनते हैं कि वो इस तरह से करते आए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात, शायद मैं चूंकि एक मकबूजा कश्मीर से एक जिस तरह एक ताल्लुक है, तो वहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ के जिन लोगों को वहाँ के लोग अपना लीडर समझते हैं, या ये समझते हैं कि वह हमारे एहसासात की और उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, तो वहाँ सैयद अली गिलानी से लेके आसिया अंद्राबी साहिबा से लेके यासीन मलिक साहब से लेके इन लोगों के जो जज्बात हैं, इन लोगों के जो नारे हैं, जो वहाँ जब भी कोई जनाजा निकलता है, किसी शहीद का जनाजा उठाया जाता है, उन्हीं नारों को, जो ये हमारे हुर्रियत के असीरान नारे बुलंद करते हैं, इनको बुलंद किया जाता है। तो वहाँ 10,000 से बल्कि 1000 से ज़्यादा लोगों का जो मजमा निकलता है जनाजों पे, वो इन नारों को एंडोर्स करते हुए एक लिहाज से रेफरेंडम दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रहना कम से कम कश्मीरियों के ना हक में है, ना ही उनकी चाहत में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद। देखिए, जब हम मज़ीद सोचते हैं कि अल्लामा इकबाल का एक फ़लसफ़ा, या अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म का जो एक ख्वाब पाकिस्तान के लिए था, और उसको पाकिस्तान को जिस किस्म की रियासत देखना चाहते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, वो उसी रियासत को तस्लीम करते हैं, जो आज भी वहाँ से एक ताल्लुक और वहाँ से एक मोहब्बत के जो तराने और पैगामात आते हैं, वो उसी रियासत पाकिस्तान के लिए आते हैं, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। बहैसियत मतलब एक तालिब इल्म के भी, मैं ज़ाहिर है हर चीज़ में एक तालिब इल्म ही समझूंगा अपने आप को, उसमें भी मैं ये देखता हूँ कि आसिया अंद्राबी साहिबा के शौहर हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम पख्तू साहब, जो उधमपुर जेल में गुज़श्ता तकरीबन 27 साल से अब कैद हैं। उनकी कुछ किताबों का अगर मुतालिया किया जाए तो हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो बसने वाले कश्मीरी हैं, उनकी मोहब्बत इस पाकिस्तान के साथ बहैसियत एक मस्जिद के है, बहैसियत एक मदीना सानी के है। वो इस चीज़ को तो तस्लीम करते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में इसकी रियासत हुकूमत में, इसके चलाने में शायद कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान एक ऐसी इमारत है, पाकिस्तान एक ऐसी मस्जिद है जो हमारे लिए पहले भी मोहतरम थी और आज भी हमारे लिए उसी तरह लायक है मोहब्बत। मैं आखिरी बात जिसके ऊपर फिर आप अगर कोई सवाल करना चाहें या पूछना चाहें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मकबूजा कश्मीर के एक बहुत ही मशहूर पीएचडी स्कॉलर जो शहीद हुए थे अभी गुज़श्ता 1.5 साल पुरानी बात तकरीबन, मन्नान वानी की एक जो बहुत सारे आर्टिकल्स, उन्होंने 2-3 आर्टिकल्स लिखे थे, उसकी एक लाइन है कि when the occupation is ugly, the resistance cannot be beautiful। हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर सिर्फ एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं रखी कि वहां पे पहले हम 7 लाख कहते थे, अब 9 लाख कहते हैं, और अब उससे भी ज्यादा की फौज वहां पर हम कंसिडर करते हैं। मिलिट्री ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करता है, वहाँ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन भी मौजूद है, वहाँ एजुकेशनल ऑक्यूपेशन भी मौजूद है, वहाँ एजुकेशनल ऑक्यूपेशन से आगे फैमिली डिविजन्स हैं। वहाँ पे मैं आपको जो हाफ विडोज की टर्म हम यूज करते हैं, वहाँ पे हाफ ऑर्फन्स भी मौजूद है। वहाँ ऐसे भी मौजूद हैं बच्चे जिनके वालिदैन तो हयात हैं लेकिन वो जेलों में बंद हैं और उनसे वो कभी मिल नहीं पाते खुले आसमान के तले। और हिंदुस्तान की जेलों का हाल तो सबको मालूम है। श्रीनगर की जेलों में भी वो इसी तरह रवा रखते हैं कि आप इतने फासले पर होते हैं कि बमुश्किल आप एक दूसरे की आवाज़ को क्लियर कट सुन सकेंगे। ये कुछ हकाइक हैं जो हमें समझने और मानने भी पड़ेंगे, और ये कुछ हकाइक हैं जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात करूँगा, क्योंकि इकबाल का फ़लसफ़ा जो है वो सिर्फ बड़े सगीर के हद तक नहीं था। इकबाल का जो फ़लसफ़ा है मैं समझता हूँ कि वो बिलअमूम पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया के लिए, और यही वजह है कि इकबाल जो है वो सिर्फ यहाँ एक मुफक्किर के तौर पे समझे नहीं जाते, रिकग्नाइज नहीं किए जाते, बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा में और मुस्लिम उम्मा के बाहर भी इकबाल को उसी तरह से समझा और माना जाता है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी इस लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। थैंक यू मुजाहिद भी, आपके माशाल्लाह ख्यालात और आपसे जो सवालात हैं वो भी हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी मियाँ साहब के लिए, मियाँ इकबाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनके लिए एक सवाल है अब्बास सियाल साहब का। अब्बास भाई, आपका स्पीकर ऑन है, आप मियाँ साहब से कुछ सवालात करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी सेकंड राउंड में हम दोबारा मुजाहिद भाई आपसे रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप सुन सकते हैं? जी जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद एक पैगाम है वो ज़रूरी है पहुंचाना इकबाल साहब का कि मुनफियत एक है इस कौम का नुकसान भी, एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। सर सवाल ये था कि हर लीडर ये बात तो करता है, लेकिन हर लीडर किसी न किसी फिरके का लीडर होता है। वो एक नेशनल जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अमल है, वो नहीं नजर आया। मतलब हम पैदा हुए जब से एक जो फिक्र इकबाल थी उस पर अमल नहीं नजर आया अभी तक। किसी भी लीडर ने कोई ऐसा नेशनल इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन नेशनल स्लोगन्स बने लेकिन नेशनल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहला ये, और दूसरा ये कि हमारे पास लोग स्टेज पे आके तो कुछ कहते हैं, लेकिन जब बैक स्टेज जाते हैं तो उन्हीं के फॉलोअर्स उसके बरक्स चल रहे होते हैं, और इसी की वजह से हमारा जो नेशनल सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। और इसके बारे में क्या कहना है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि हम इसमें बेहतरी लें और इसमें इम्प्लीमेंट हो। थैंक यू सर। देखें, ये जो जहाँ तक ये आपने वो पहली वो बात
खुदा भी है, कुरान भी है, कि वे तो तौहीद की बात कर रहे हैं। एक खुदा, एक कुरान, एक रसूल, और फिर उसमें इतने ज़्यादा जो है आपको फ़िरका वारियत का वो पैदा होना, तो मेरे ख्याल में तो हम एक तो एज कौम हम ये तौहीद की इनामा की इस इंटरप्रिटेशन को अभी तक वो समझ ही नहीं सकते। अगर कोई समझ सकता या हमारा कोई लीडर को समझता तो शायद उसका विजन जो था वो फर्क होता है। ये आप वो दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल कि एक तो अलामा की सोच या डायरेक्शन के या कायदे आज़म की डायरेक्शन के बरक्स हमारा जो इस मुल्क के अंदर जो जिस रास्ते पे हम चले हैं वो इट्स लाइक 180 डिग्रीज का फर्क है दोनों के अंदर। और दूसरा आपने क्या पूछा था सर के स्टेज पे जो हमारे लीडर्स आते हैं जब ये भी वो मसला है। करते हैं, अब उसमें हम वो तो मुनाफिकत का वो क्या इलाज करें हम लोग, आप जिसके अंदर वो मुनाफिकत है तो उसको लेकिन खुदी का वो दर्सी ये है, इट्स वो आपके अंदर जो एक नॉट ओनली it teaches you how to live in this material world but in spiritual world also, आप में एक complete balance create करती है। और it's like जिस तरह वो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इंसान जो है वो अपने अरूज पे वो तब पहुंचता है when you should always appear as you are। तो जो आप अंदर से वो बाहर में हो तो वो ही शख्स होता है जो कि आप वो समझे कि एक बड़े अच्छे लेवल ऑफ कैरेक्टर्स ने जो है अपना वो डेवलप किया होता है। अब इस चीज का तो नहीं है वो मसला तो है ये मसला फिर वही आता है कि हम इकबाल की फिक्र की तो जब आप बात करते हैं, जब आप उसकी गहराई में आप हो जाते हैं तो आपकी ये सारे कैपिटलिज्म, आपकी ये अथॉरिटेरियन रूल और ये जाहिल किस्म की मुलायत और ये बेअमली सिखाने वाले पीरी फकीरी के सिलसिले जो हैं वो अल्लाह तो उनको जड़ों से काट देते हैं। और इज्तिहाद के ऊपर इसीलिए वो जोर देते हैं कि इज्तिहाद के जरिए ही आप इन सारी चीजों को आप ओवरकम कर, लोग ऐसे लीडर्स को वो इलेक्ट करके लेके आते हैं। लेकिन मुझे तो जो है ना वो अलामा कहते हैं कि जब कौमों के अंदर गुलामी की खूब भर जाती है ना तो फिर उनको फिर वो क़यामत के रोज हजरत इसराफील के वो सूरे वो बांगे से ही उठ सकती है वो कौम। तो हम तो अंग्रेज के खिलाफ हमने जो है वो जद्दोजहद की, फिर हमने हिंदू के खिलाफ की, और उसी वक्त आपकी ये वो उलमा जो आपके पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे और कायदे आज़म के मुखालिफ थे और इकबाल की भी सोच के मुखालिफ थे, तो उन्हीं के साथ तो आपकी अभी भी मसले मसाइल चल रहे हैं। आपने अंग्रेज और हिंदू से तो निजात पा ली, लेकिन आप दखल वो उनको खुद पाल पोस कर जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड उसमें तो बेसिकली तो आपको एज अ पीपल ही जो है ना ऐसे लोगों को हम इलेक्ट भी हम फिर उन्हीं को लेके आते हैं। उसका इलाज इट्स नॉट ओनली कि आप हम सिर्फ लीडर्स को हमको ब्लेम करते हैं, हमने अपने आप को भी देखना है। हम वे डू वी स्टैंड, हम बात तो हम सारे करते हैं कि हमारे लीडर्स के अंदर इस किस्म के हमारे रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए जो उनके पढ़े लिखे भी हों और अच्छे हस्ब नसब के भी हों, ईमानदार भी हों, सिंसियर भी हो, इंटेग्रिटी भी हो उनके अंदर। लेकिन जब ऐसा कोई भी शख्स आके वो खड़ा होता है, इलेक्शन लड़ता है तो हार जाता है। मैं तो समझता हूँ कि बेचारा मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी अगर इलेक्शन पे खड़ा होते तो वो भी ना कभी जीतते, क्योंकि इसके वो डायनामिक्स ही हमारे जो है। आई वुड से के नंबर 1 तो एक तो आप ये मरूसी सियासत में से निकले, ये कौन आप लोग दूसरे खानदानों की तरफ जो देखते हैं नौजवान सारे कि जी हम उसकी जो है वो लीडरशिप को मानते हैं, वो मरूसी लीडरशिप के इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, उसकी प्रोविजन ही कोई नहीं है। बल्कि अल्लामा तो कहते हैं कि खत्म नबूवत का पहला जो असूल वो ये है कि अपना जो है ये हेरेडिटरी रूल जो है वो खत्म करती है। तो आपने वो फिर अपने ऊपर उसको आप वो तारी कर लेते हैं। आप बजाय के ये जो हमारे नौजवान अपने अंदर खुद क्यों नहीं ये सलाहियतें पैदा करें? Why can't you people leaders why can't you adopt the print जो डायरेक्शन आपको देखते हैं उसको सोचें, उसको परखें, उसे
कन्विंस हो तो फिर उसको, अगर आपको दिल को लगती है तो जरूर फॉलो करेंगे, नहीं लगती तो आपकी अपनी मर्जी है, आप पढ़े लिखे, आप इस लेवल पर पहुंचे हैं that you can decide between what is wrong and what is right, but you have to think beyond yourself. तभी जो है वो नेशंस ही तब बनती हैं जब आप थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, जब आपने अपनी नाक की सीट से अपने मुफाद की खातिर आपने वो देखना ही नहीं है और किसी चीज को, तो फिर वो कौम ने तो सेक्रीफाइस ही होना ना, उसको आम आदमी ने तो सेक्रीफाइस ही होना, उसका भी इंटरेस्ट भी सेक्रीफाइस होगा, उसकी वो जो है मुआशी हालत भी सेक्रीफाइस होगा. तो ये इश्यूज हैं, इसको इतना आसान नहीं है इकबाल के जो है वो थॉट को, इसीलिए तो आपके जो है वो करिकुलम में निसाब के अंदर ही है ही कोई चीज. मैं एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने एचएसएन कॉलेज से कुछ नहीं सीखा. मैं समझता हूँ कि जो भी मेरी तरबियत हुई है, जो मेरी सोच की डायरेक्शन बनी, वो मेरी अपनी एफर्ट से और मेरे बुजुर्गों की वजह से. So, I would suggest कि इसमें एफर्ट आप खुद करें, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर जो है ये इस किस्म की चीज को, आपको इंसान यही फिक्र बनाएगी. आपका कोई सब्जेक्ट, आपको इकोनॉमिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करियर वो जरूर देंगी, लेकिन थिंक इन टर्म्स ऑफ जिस तरह का वो एक एक मकसदियत जो इंडिविजुअल में अलामा देखने चाहते थे और फिर एक मिनहसन कौम के अंदर, वो आई थिंक आपको अभी तो फिलहाल तो खुद. सर अभी चूंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम एक फाइनल राउंड ले लेते हैं सबसे शॉर्ट इनपुट के लिए. कैसर भाई, शॉर्ट पैगाम क्या देना चाहेंगे, 1 or 2 लाइनर, 1-2 लाइनों के अंदर अपना आखिरी शॉर्ट पैगाम दे दें ताकि उसके बाद हम वाइंड अप करें. नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? आपका बहुत शुक्रिया. नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमें आपस में मिलजुल के ना एक रेजिस्टेंट फोर्स बनना चाहिए, अल्लामा इकबाल की तालीम को मद्देनजर रख के, चाहे वो मकबूजा कश्मीर से लोग हो या आज़ाद कश्मीर से लोग हो या पाकिस्तान से हो या जम्मू रीजन से हो. हमें सब लोगों को इकट्ठे होके इस ऑपरेशन और जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो चल रहा है ऑपरेशन, इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत है. जब हम एक हो जाएंगे, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर हम देख सकते हैं, तब जाके हम कामयाब हो जाएंगे. जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई. जुनेद भाई आपकी तरफ आते हैं. जुनेद भाई, फाइनल वर्ड्स दीजिएगा, 1-2 लाइनों के अंदर आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? माइक ऑन कर लीजिए. शुक्रिया. बेसिकली मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, खबर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ. तो मैं अपने यहाँ पे सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो नौजवानों का मेरा पैगाम है कि जो हजरत अल्लामा इकबाल की जो हमारे लिए उन्होंने वो तालीमात तय की थी, उन्हें हम देख ले, उन्हें हम पढ़े, उन्हें हम परखे, और जिंदगी में अगर कुछ हासिल करे तो उसका मतलब पूरा का पूरा मतलब वो निचोड़ है, वो उनकी जो जितनी भी उनकी पढ़ाई है, जितनी भी उनकी टीचिंग्स है, उनको हम फॉलो करें, वही हमारे लिए मशाल राह है. जी बहुत शुक्रिया जुनेद भाई. अब चलते हैं मुजाहिद भाई की तरफ. मुजाहिद भाई, फाइनल वर्ड दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. मैं अनम्यूटेड हूं. जी आप अनम्यूटेड हैं. यू आर ऑडिबल. प्लीज गो अहेड. बहुत शुक्रिया. आखिरी अल्फाज जो मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है वो सिर्फ इतना है कि जो एक फ़लसफ़ा खुदी है कि आपने अपने ऊपर भरोसा और बिलाशुबा अपने रब पे भरोसा करते हुए हर मंजिल को पाने की एक कोशिश और जस्तजू ज़रूर करनी है. वो मंजिल चाहे आपको कितनी ही मुश्किल लगती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक दफ़ा वो यकीन, वो अज़्म और वो खुदी आपके अंदर डेवलप हो चुकी हो, तो फिर कोई भी मंजिल जो है कुर्बानियों के साथ ही सही, लेकिन उसे हासिल करना मुश्किल नहीं है. जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई. सर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर मियां इकबाल सलाहुद्दीन साहब से, सर फाइनल वर्ड्स के साथ आज के सेशन का इख्तिताम सर करेंगे. काइंडली सर फाइनल वर्ड्स दीजिए. वहाँ पर किया इस मौजू के लिए. मेरे ज़हन में तो उलमा का एक शेर है, वो आ रहा है, वो कहते हैं कि चीज मिल्लत के दूरी ला इलाहा बासद हजारों चश्म दूदन निगाह. तो कहते हैं कि ऐ सारे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले लोग हो, मिल्लत क्या होती है? वो कहते हैं वो मिल्लत तब बनती है जब आप 100,000 सैकड़ों हजारों निगाहों के साथ आपका विजन एक होता है, तो तब वो मिल्लत बनती है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं या वहाबी हैं
या देवबंदी हैं या जो भी आपका फिरका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि आपको अपने कॉमन गोल, अपनी कॉमन वेलफेयर जो है वो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, और उसके ऊपर आपकी जब सबकी नजर एक होगी तो तब आप एक मिलत और एक यूनानिटी आपके अंदर जो है वो एक प्लेस समझते। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर मियां सलाहुद्दीन साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। कैसर भाई हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर के उस पार से। जुनेद डार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। वो वहीं से जो है वो श्रीनगर से मौजूद थे हमारे साथ। मिस्टर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे यूथ रिफॉर्म्स कमेटी के, और डॉक्टर मुजाहिद गिलानी पिम्स इस्लामाबाद से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, कश्मीर यूथ एक्टिविस्ट हैं। तमाम अहबाब का जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगले किसी भी सेशन के साथ आप लोगों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह निगहबान।